Good morning, everyone. Respected Dr. Dinesh Kumar Sharma, Principal, Government Degree College Wali, our esteemed resource person, Mr. Siddharth Rathore, Assistant Professor of Economics, Mata Sundari College for Women, University of Delhi, faculty members, students, and other participants. It is our privilege to welcome you all to this one-day National FDP on assessing the health of Indian economy. As we know that understanding the Indian economy is very crucial as it helps us to analyze growth trends, policy impacts, and future opportunities in one of the world's fastest growing economies. With constant shifts in inflation, GDP, employment, and global trade, economic awareness allows individuals to make informed financial, business, and policy decisions. For educators and teachers or researchers, a deep understanding of economic indicator is essential for guiding students and shaping discussions on India's development, fiscal policies, and global competitiveness. As this FDP aims to equip participants with insights into these crucial aspects, hosting a well-rounded perspective on Indian economy's health. We are honored to have our esteemed speaker, Mr. Siddharth Rathore, with us, who will share his valuable insights on these changes. Before inviting Principal Sir to formally welcome participants and Mr. Siddharth Rathore, let me have the opportunity to introduce our resource person, Mr. Siddharth Rathore is working as an assistant professor in economics department of Mata Sundari College for Women, University of Delhi. He comes from a distinguished family of professors, which is the only family to have taught and contributed 100 years in University of Delhi. He has a master's in economics from Delhi School of Economics and PGDM in artificial intelligence and machine learning from University of Texas, Austin. He also has a LLB from University of Delhi. Apart from Delhi University, Mr. Siddharth is also a visiting professor at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, where he trains IAS, IPS, IFS, and civil services probationary officers in foundation course. He is also a visiting professor at Faculty of Law, University of Delhi, and Indian Institute of Public Administration, where he takes session for senior level bureaucrats. He also guides aspirants for civil services examination, RBI, and IES, Indian Economic Service Examination. And for digital dissemination of education and resources, he also has a YouTube channel named The Pink Professor. I welcome you, sir. So to formally begin, I invite Dr. Dinesh Kumar Sharma, Principal of Government Degree College Wali, to share his opening remark. Hello. Hello. Yes, sir. We can hear you. Good morning to all of you. This is Dr. Dinesh Kumar Sharma,
Principal, Government Degree College, Jwali. First of all, I would like to welcome all of you in this one-day National Faculty Development Program, FDP, on the topic Assessing the Health of Indian Economy. This program, it is organized by Department of Commerce, Government Degree College, Jwali, under the supervision of Professor Nishant Narang, Head, Department of Commerce, and also coordinator of this faculty development program. On this occasion, we have with us our resource person, Mr. Siddharth Rathorji, who is Assistant Professor of Economics, Mata Sundari College for Women, University of Delhi. So, on behalf of staff members and students of Government Degree College, Jwali, I would like to welcome Shri Siddharth. Rather, I would like to welcome and thanks also Shri Siddharth Rathorji for accepting our request to be a resource person in this faculty development program. Thank you. Thank you very much, sir, for sparing your valuable time to be with us today as a resource person. Thank you. I also want to congratulate the students and staff of Commerce Department, especially Professor Nishant Narangji, Head of Commerce Department, for their consistent and excellent efforts for organizing such an informative faculty development program on a very relevant topic, that is assessing the health of Indian economy. The main motive or main purpose of this FDP is to provide valuable insights into the current economic scenario, key indicators, and future prospects of Indian economy. We all know that Indian economy is a developing mixed economy that is growing rapidly. It is the world's fifth largest economy by nominal GDP. India's economy is expected to become the world's third largest economy by 2027. As of recent data, Indian economy is considered relatively healthy with strong growth momentum driven by a robust services sector, public infrastructure investment, and a rising consumer class. However, challenges remain like unemployment, particularly among youth, and so as of recent data, Indian economy is considered relatively healthy with strong growth momentum driven by a robust service sector, public infrastructure, and a rising consumer class. However, challenges remain like unemployment, particularly among youth, and need to further develop manufacturing capability to fully capitalize on its democratic dividend. So, as we have with us an expert on the topic having vast experience, I hope the students, faculty members, and all other participants will definitely get informative and valuable insights into the current economic scenario, key indicators, and further process. So not taking much of time, once again, I would like to welcome our resource person of the day, Shri Siddharth Rathorji, and all other participants in this faculty development program. Thank you very much. Thank you so much, Principal Sir, for your kind words and joining us. Now, without any further delay, I invite Mr. Siddharth Rathore to begin the session. Thank you, Nishant. Thank you, Dr. Sharma, for having me on for this particular session, and thank you, Nishant, and the entire college and the efforts of the Commerce Department for conducting this particular session and considering me for this particular opportunity. Now, what I'll do is I'll be discussing the health of the Indian economy, and typically when I discuss the health of the Indian economy, we'll be talking about a lot of parameters. I'll be showing you a presentation.
And the way that I proceed with all my lectures, the ones that I give in different parts of the country, is that I go usually bilingual. I like to understand. I like everyone in the audience to understand the Indian economy. At times, what we do is we have these jargons, and we complicate things. I would like to uncomplicate things and explain you the assessment of the Indian economy in your own language as well. So I will be bilingual in my particular lecture. I don't have any qualms in speaking English, but it's just that जब हम इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो अगर हम अपनी भाषा के अंदर भी बात करें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. So that's why I like to be bilingual. Now coming towards let me just show my presentation and just give me 2 minutes. I will share my screen and show you my presentation. Please give me 2 minutes. Yes, all of you can see my screen. Is my Yes, sir. Yes, sir, we can. Yes, it's visible. all right? Just a second. All right. So what we are going to actually, I cannot see my screen for some reason. Oh, what is this? I'm not getting my screen. Just a second, folks. I'm just trying to see my own screen. So you have to go back to your presentation file. No, I am on my presentation file. It's just a new platform for me. Okay. You can see my screen, right? Yes, sir. All right. So now let's discuss about Indian economy. Now, जब हम कहते हैं assessing the health of the Indian economy, I like to compare it with basically I would like to compare it with the health of an individual. जब हम health of an individual के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे देखेंगे जिसकी वजह से आप यू कैन से कि दिस इज हाउ द हेल्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑफ योर ओन हेल्थ विल बी. जब हम किसी के हेल्थ के बारे में बात करते हैं सबसे पहले दी थिंग दैट आई ट्राई टू सी इज द बॉडी कॉम्पोजिशन. तो फॉर एग्जांपल इफ यू सी मी you can easily assess and say कि yes I am a fit person in the sense that I don't have a belly and I have a I mean I work out. तो वो पता चल जाता है कि yes this particular person is a fit person. For example अगर आप रोहित शर्मा वर्सेस क्या कहते हैं विराट कोहली को देखेंगे तो दोनों में आपको देख के ही पता चल जाएगा कि विराट कोहली इज अ मच मोर फिटर पर्सन. सो कई बार बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस जैसे हम देखते हैं वैसे हम हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं. अगर हम थोड़ा डीपर डाइव के अंदर जाएं, if you want to get into a deeper dive, then we can see the vitals of a particular individual. For example, resting heart rate and BP, respiratory rate, temperature. All of these factors वो बताएंगे हमारी हेल्थ क्या है इकोनॉमी की, हमारी हेल्थ क्या है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की. सिमिलरली अगर मुझे और डीपर डाइव के अंदर जाना है, अगर मुझे इफ आई वांट टू सी द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल even at a much more deeper level, then I would go for a blood I mean a blood report where you have the CBC, the complete blood picture. You have sugar levels, you have lipids, which is basically the fat levels that are there. Then you have the liver function test, kidney function test. ये सारे बहुत सारे आपके पास टेस्ट होंगे जो आपको अगेन बताएंगे that how is a particular individual faring. And finally, when we talk about the economic health, then we have lifestyle and nutrition as well. So not just this, other factors are also very very important to tell you that how's your health. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 8 घंटे नहीं सो रहे हो तो आपके लाइफस्टाइल पे इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर आप न्यूट्रिशन खराब लेते हो तो आपके लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ेगा. तो जैसे हम एक इंडिविजुअल के लिए देख सकते हैं कि दीज आर ऑल द डिफरेंट कंडीशंस थ्रू व्हिच यू कैन सी योर हेल्थ, वैसे ही अगर हम इकोनॉमिक हेल्थ देखना चाहें कंट्री की
तो क्या होगा, आज की डेट में बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं जो आपको ये सारे के सारे फैक्टर्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई एप्पल वॉच पहनता है, तो आपको एटलीस्ट ये जो टॉप 2 है ये आपको कांस्टेंट रेट पे पता चलता रहेगा। एक अल्ट्रा ह्यूमन करके एक वो आती है, एक वेबसाइट भी है, और एक और जस्ट गिव मी 1 सेकंड, देयर इज अ प्रॉब्लम इन फ्रॉम माय स्पीकर एंड जस्ट गिव मी 1 सेकंड। Yes, I think now the issue of voice will be right. So when we talk about economic health, जब हम बात करते हैं, तो जैसे मैं आपको अल्ट्रा ह्यूमन के बारे में बता रहा था। अब अल्ट्रा ह्यूमन एक रिंग आती है, ऐसे एक पैच आता है, अगर आप वो लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन सी ऐसी आइटम फूड की है जिससे आप एलर्जिक हो, या जिससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। सो अगेन यू कैन देन सी कि अच्छा कौन सी चीज आपको खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। अगर मैं ये सेम कंसेप्ट इकोनॉमी के ऊपर लेके जाऊं, क्योंकि हम हेल्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कौन कौन से पैरामीटर्स देखेंगे। तब हम देखेंगे इस केस के अंदर वी विल सी हेडलाइन नंबर। तो हम ये अब बात करेंगे कि हेडलाइन नंबर कौन कौन से होते हैं कंट्री के अंदर। वन हेडलाइन नंबर दैट कम्स टू आवर माइंड इज जीडीपी। तो जीडीपी, जीवीए, जीएनपीए, क्या 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 नंबर्स हैं इस वक्त हेल्थ क्या चल रही है अकॉर्डिंग टू these numbers। देन उसके बाद वी विल सी दी पल्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसे हम पल्स, यहाँ पर वाइटल्स में पल्स देख रहे थे, हम देखेंगे कि इकोनॉमी का पल्स कैसे हम देखते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट वेरियस फैक्टर्स, जैसे प्रोडक्शन और कंजम्पशन के होते हैं, जिससे हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर पल्स क्या होती है, कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो और कितना आप कंज्यूम कर रहे हो। सो वो पल्स रेट किस किस फैक्टर से हम देखते हैं, वी विल हैव अ असेसमेंट ऑफ दैट। फिर हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम के बारे में बात करी कि ब्लड स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। ब्लड स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमी हम देखेंगे कि इट इज टिपिकली योर फाइनेंसेस। और फाइनेंसेस को जब हम देखते हैं, तो फाइनेंसेस में कौन कौन से वो फाइनेंसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमारा जो इनर हेल्थ है, जो हमारे सर्कुलेटरी फैक्टर्स हैं, क्या कहते हैं, इकोनॉमी, वो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट ग्रोथ हमारी कंट्री के अंदर कितनी चल रही है, क्योंकि अगर क्रेडिट ग्रोथ खराब चल रही है, उसका मतलब है कि क्या कहते हैं, लोग लोन नहीं ले रहे हैं, लोन नहीं ले रहे हैं, तो आगे प्रोडक्शन नहीं करेंगे बिजनेस मैन्युफैक्चरर, और अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी। तो अगेन, जैसे आप ब्लड स्ट्रीम से देख के आपको इनर प्रॉब्लम्स पता चल सकती हैं, आपको ब्लड स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमी में क्रेडिट स्पेशली को देख के आपको इनर प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की पता चल सकती है। और अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो जैसे ही अगर आपका क्लॉग्स होते हैं, अगर आपके आपके आर्टरीज के अंदर क्लॉग्स हो जाते हैं, तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है। वैसे ही कोई भी अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रॉब्लम आएगी, तो इकोनॉमी को शॉक लगेगा एंड द इकोनॉमी विल फॉल्टर डाउन। सो दीज आर ऑल फैक्टर्स। तो इसीलिए हम इसको 1 to 1 रिलेशन बोलते हैं, कि जैसे हेल्थ होती है वैसे ही हम इकोनॉमी की हेल्थ भी बता सकते हैं। फिर प्रेशर गेजेस जैसे होते हैं, हम कुछ प्रेशर गेज भी देखते हैं इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी के प्रेशर गेजेस का एग्जांपल हम लेंगे, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, सीपीआई हो गया, फ्यूल इन्फ्लेशन हो गया। ये सारे कुछ फैक्टर्स देखेंगे जो हमें बताते हैं कि इकोनॉमी का जो प्रेशर गेज है वो किस तरीके से चल रहा है। एंड फाइनली वी दी पीपल, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी सारी चीजें ठीक हो, बट अगर आपका मेंटल स्पेस खराब है, आप बहुत फिट इंसान हो, बट आपका अगर मेंटल स्पेस खराब है, तो आपको मतलब उस चीज का कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, चाहे फिजिकली कितना फिट हो। फिर जैसे अगर आप स्लीप कवर आप ठीक से नहीं कर रहे हो, अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, तो आप बाकी मर्जी आप कितना भी कंट्रोल में कर लो, आपकी हेल्थ पुअर रहेगी। वैसे ही ये सारे नंबर्स के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम देखेंगे, जो आपको बताता है कि इकोनॉमिक हेल्थ इज बियॉन्ड दीज हेडलाइन नंबर्स, बियॉन्ड आईआईपी एंड बियॉन्ड योर इन्फ्लेशन, बियॉन्ड योर जीडीपी। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमें देखने हैं, जो हमें बताएगी कि रियल हेल्थ जो इकोनॉमी की कैसी है। जैसे इसके अंदर हम पावर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारे डेटा, उसके जेंडर इक्विटी, इन सारे चीजों के बारे में हम बात करेंगे, जो हमें हेल्थ बताता है। इकोनॉमी में लोगों की हेल्थ कैसी है और लोगों की एजुकेशन लेवल कैसा है। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि हाउ इज द हेल्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पर जब हम ट्रैकिंग करते हैं इकोनॉमिक हेल्थ की, तो हम ट्रैकिंग करते हुए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर, जो हेडलाइन नंबर आता है, जीडीपी और जीबी आता है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि जीडीपी, हम बेसिक सेंस में देखेंगे जीडीपी क्या है, जीबीए क्या है, इस वक्त जीडीपी और जीबीए क्या है। फिर उसके बाद हम बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के पास ऊपर आ जाते हैं। वी विल सी व्हाट दीज हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आर। फॉर एग्जांपल, हमने पहले बात करी थी कि पल्स ऑफ द इकोनॉमी।
जब हम पल्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन की पल्स देखनी है, और इसी को हम बोलते हैं रियल सेक्टर, जहां पर रियल प्रोडक्शन हो रहा है, रियल कंजम्पशन हो रहा है। तो उन सारे सेक्टर्स को हम रियल सेक्टर बोलते हैं। जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो हमारा नॉमिनल सेक्टर हो जाता है। तो रियल सेक्टर के अंदर जब हम पल्स देखने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारे आज की डेट में पैरामीटर्स मिलते हैं। एक टाइम होता था इंडियन इकोनॉमी में, आपको अगर इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ देखनी है तो आपके पास सिर्फ एक जीडीपी का नंबर होता था, या फिर आपके पास एक इन्फ्लेशन का नंबर होता था, तो उसी से आप देख सकते थे। और आपके पास क्वार्टरली डेटा होता था, तो हर क्वार्टर का आपके पास डेटा आ गया, उसके बेसिस पे ऊपर आप इकोनॉमी की हेल्थ देख रहे हो। बट आज की डेट के अंदर हमारे पास रियल टाइम बहुत सारे डेटा सेट्स आने लग गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आईआईपी का डेटा। आईआईपी का डेटा आपको हर महीने बता रहा है कि पिछले महीने में इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि ज्यादा फोकस मैन्युफैक्चरिंग का होता है आईआईपी में अंदर। फिर उसके बाद हम पीएमआई देखते हैं, दिस इज परचेजर्स मैनेजर इंडेक्स। ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा अपने चार्ट्स के अंदर। तो वो दिखाएंगे कि अगर ये लेवल 50 से ऊपर होता है तो दिस इज एन इंडेक्स जो कहता है कि अगर आप 50 से ऊपर हो तो आप एक्सपैंड कर रहे हो, और 50 से नीचे हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये भी आपको प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बारे में बताता है। देन एक नया डेटा सेट पिछले 7-8 सालों में आया, वो है जीएसटी का डेटा सेट। अब ये जो जीएसटी का डेटा सेट है ये आपको बताता है, क्योंकि जीएसटी का मतलब कि प्रोडक्शन हो रही है या कंजम्पशन हो रही है। आई थिंक किसी आपका माइक ऑन है। Siddharth sir, please unmute yourself and continue. ओके ओके, अभी लास्ट पॉइंट तक तो अनम्यूटेड था ना शायद से, अभी Yes sir, yes sir, yes sir. ऑलराइट। सो जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं आई मीन रीसेंट डेटा सेट्स की, तो पिछले 7-8 सालों से 2017 से हमारे पास जीएसटी का डेटा सेट भी आना शुरू हो गया, और ये हमें मंथली डेटा बताता है। अब जीएसटी आपको मंथली डेटा किस तरीके से बताता है? अब जीएसटी का मतलब हो रहा है कहीं तो प्रोडक्शन हो रहा है और कहीं कंजम्पशन हो रहा है। सो जीएसटी के अगर आपका जीएसटी का अमाउंट बढ़ता हुआ जा रहा है तो आपको ये बता रहा है कि प्रोडक्शन भी हो रही है और कंजम्पशन भी हो रही है। तो पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि एक 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की हमारी जीएसटी कलेक्शन चल रही है, जो हमें दिखाता है कि हाँ, इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये एक पॉजिटिव फैक्टर भी चल रहा है कि लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और लोग कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर जीएसटी हो रहा है तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी अगर सामान बिक रहा है या खरीदा जा रहा है, तो 50,000 से ऊपर कोई भी सामान अगर आप इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करोगे तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो ई वे बिल्स भी आपको बताते हैं कि आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन, स्पेशली किस किस स्टेट के अंदर कितना प्रोडक्शन और किस स्टेट के अंदर कितना कंजम्पशन हो रहा है। सो ये हमारे पास आज की डेट में मंथली लेवल पे डेटा अवेलेबल है। देन ऑटो सेल्स का हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, वो हम देखेंगे कि वो क्या क्या बताएगा। और हम देखेंगे ऑटो सेल्स के डेटा से कि इंडिया में शायद से एक मिडिल क्लास का एक साइलेंट क्राइसिस भी चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे स्टेट के अंदर, सपोज कोई कहता है कि मेरे स्टेट के अंदर प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही है, मेरे स्टेट के अंदर गवर्नेंस बहुत अच्छी है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि मेरे आने की वजह से क्योंकि ये सरकार आ गई है इसलिए हमारे स्टेट के अंदर इतनी इंडस्ट्री आ गई है। अगर आपको इस पर्टिकुलर फैक्ट को अगर आपको वेरीफाई करना है, सपोज मैं आपको कहता हूं कि एक स्टेट कहता है कि आपने मुझे इलेक्ट किया और मेरे इलेक्ट होने के बाद एक पॉलिटिशियन कह रहा है कि मेरे इलेक्ट होने के बाद इस स्टेट के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हुई है। अब आप उस क्लेम को वेरीफाई कैसे करोगे? उस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक और डेटा होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का। अगर आपके यहाँ पर इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप हुई है तो इंडस्ट्रीज को सबको बिजली चाहिए, तो दैट मींस आपका बिजली का कंजम्पशन भी बड़ा होगा। सो ये भी एक चीज दिखाता है आपको इकोनॉमी के बारे में कि क्या आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने घंटे बिजली की डिमांड हो रही है, कितना बिजली का कितना बिजली के कट्स आते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको डिटरमिन करेगा कि आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन से एरिया में हो रही है। सो ये सारे फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद कार्गो ट्रैफिक, ये भी हमारे पास हर महीने का डेटा आता है जो आपको बताता है कि अच्छा हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना हो रहा है। सो जो ट्रेडिशनल तरीका होता था जीडीपी को, और यही क्योंकि ये एफडीपी रखी गई है इसीलिए रखी गई है टू हेल्प एवरीवन अंडरस्टैंड, स्पेशली द फैकल्टी मेंबर्स टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास आज की डेट के अंदर जीडीपी को छोड़ के हमारे पास बहुत सारे ऐसे रियल टाइम नंबर्स हैं जिनको हम ट्रैक करते हैं, जिनके बेसिस के ऊपर आज की डेट में इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि रियल टाइम इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है।
मैं जब डॉक्टर के पास जाता हूं तो डॉक्टर को बताना है कि आज मेरी हेल्थ और अभी मेरी हेल्थ कैसी है और फ्यूचर में ठीक कैसे होगी। डॉक्टर को ये इससे कंसर्न, डॉक्टर पिछली रिपोर्ट्स देख सकता है, बट डॉक्टर अगर मुझे बताए कि पिछले हफ्ते आप ऐसे थे, उसका मेरे लिए कोई कोई मायने नहीं रखता। तो आज की डेट में रियल टाइम फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज की डेट में आरबीआई भी एक नया फोरकास्ट लेके आता है, एक करंट ग्रोथ का एक वो एस्टिमेट लेके आता है जिसको हम बोलते हैं नाउ कास्ट। ठीक है, यू कैन सर्च अबाउट इट कि व्हाट नाउ कास्ट इज। जैसे फोरकास्ट होता है, आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो, वैसे ही आप डीप लर्निंग को यूज करके, एआई को यूज करके आप करंट इकोनॉमिक ग्रोथ को भी असेस कर सकते हो, विच इज कॉल्ड एज नाउ कास्टिंग। देन उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास रियल जो आपके ये वाले हैं रियल सेक्टर है, ये आपको पल्स बताती है इकोनॉमी के। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको अगर डीपर डाइव करना है हेल्थ के अंदर तो आपको आपका ब्लड प्रोफाइल कराना पड़ेगा। अब ब्लड प्रोफाइल इंडियन इकोनॉमी का क्या है, वो उसका फाइनेंशियल सेक्टर है। और आज हम फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर स्पेशली जो जो ब्लड बाथ चल रहा है दलाल स्ट्रीट पे, उसको लेके हम बात करेंगे कि ये क्या चल रहा है, क्या क्या वो दिखाता है इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में। अब फाइनेंशियल सेक्टर का जब असेसमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ कैसा है। अब क्रेडिट ग्रोथ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बताता है कि लोग लोन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं और किस चीजों के लिए लोन ले रहे हैं। अब जब हम इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताना चाहूंगा जो आपको बताता है कि वैसे तो सब कुछ ठीक है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, बट बैंकिंग सेक्टर में जो टॉप लाइन फिगर है वो आपको काफी चीजें छुपा भी रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि हम रियल का फ्रूट जूस पीते हैं, तो रियल का फ्रूट जूस कहता है कि इसके अंदर ऑरेंजेस हैं, बट अगर आप देखोगे तो उसके अंदर ऑरेंज का कंटेंट जो होता है वो 0.1 या 0.2% होता है। मेजरली उसके अंदर ऑरेंज का फ्लेवर होता है और एक्सट्रैक्ट होता है। तो टिपिकली जब हम इसके बारे में भी बात कर रहे होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो टिपिकली हम बोलते हैं कि एनपीए इंडिया के अंदर ठीक है। एनपीए इस वक्त 2.5% अपने अपने काफी सारे सालों का कब से लोएस्ट लेवल है, कि दैट मींस आज की डेट में जितने एडवांसेस दे रखे हैं बैंक्स ने उनमें से सिर्फ 2.5%, मतलब 100 रुपए का अगर आपने लोन दे रखा है तो आपका सिर्फ 2.5 रुपए का लोन ऐसा है जो आपका लोग वापस नहीं कर रहे हैं पिछले 90 दिन तक। इसको बोलते हैं हम एनपीए रेशो। तो इंडिया का एनपीए जो है वो इस वक्त 2.5% कह रहा हूँ। तो ये तो कह रहा है कि बहुत अच्छी है, इसके हिसाब से तो काफी अच्छी सिचुएशन है। बट अगर हम एनपीए लेवल देखें पिछले कुछ साल में, स्पेशली आफ्टर कोविड, क्या हुआ है कि लोग क्रेडिट कार्ड पे लोन लेना और अनसिक्योर्ड लोन लेना बहुत ज्यादा शुरू कर चुके हैं। और क्योंकि लोगों का अनसिक्योर्ड लोन जो है वो काफी ज्यादा हाई है, इसलिए उनका उनका डिफॉल्ट रेट भी काफी ज्यादा हाई है। तो अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ 2-3 सालों से कि जो एनपीए लेवल है वो क्रेडिट कार्ड्स का और अनसिक्योर्ड एसेट्स का सबसे ज्यादा हाई है। और एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ये मैटर ऑफ क्राइसिस भी है कि इंडिया के लोग जो है आज की डेट में क्रेडिट कार्ड से बहुत बोरो कर रहे हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द वे 36 से 40% के बीच में होता है। सो ये एक स्मॉल फैक्टर है जिसके बारे में हम आगे जाके भी बात करेंगे। फिर एफपीआई के बारे में हम बात करेंगे आज की। हमारा क्या कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितना है, जो बाहर से लोग इंडिया में इन्वेस्ट मार्केट्स के अंदर करते हैं वो कितना कर रहे हैं। और हम देखेंगे पिछले 4 से 5 महीने में बहुत ज्यादा एफपीआई जो है वो इंडिया से बाहर चले गए हैं, वो यूएस की तरफ वापस चले गए हैं बिकॉज ऑफ व्हाट आई कॉल एज ट्रम्प टैंट्रम। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि ये ट्रम्प टैंट्रम भी क्या है। और फिर स्टॉक मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वो वैल्यूएशन से रिलेटेड है। और शायद से कई लोगों को ये पता ना हो कि बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट कैसे करती हैं, पैसा कैसे बनाती हैं या बोरो कैसे करती हैं। सपोज मैं अदानी हूं और मेरा जो शेयर प्राइस है वो 4,000 रुपए का है। मेरे अदानी ग्रीन्स का मान लो का शेयर का प्राइस जो है 4,000 रुपए है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं अपने ही शेयर बैंक में गिरवी रख के उसके बिहाफ पे बोरो करके और इन्वेस्ट कर सकता हूँ मार्केट के अंदर। मुझे और कोई फैक्ट्री डालनी है, मुझे और कोई प्लांट खोलना है, तो मैंने अपने ही स्टॉक्स को बैंक के बाद गिरवी रखा, से 4,000 करोड़ का मैंने गिरवी रखा अपने स्टॉक्स, और उसके बदले में मैंने बैंक से पैसे ले लिया और उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब अगर मेरा स्टॉक 4,000 रुपए से वही स्टॉक मेरा 2,000 रुपए का हो जाता है स्टॉक मार्केट की करेक्शन की वजह से, तो जो मैंने बैंक को सिक्योरिटी दी हुई थी 4,000 करोड़ का जो मैंने लोन लिया हुआ था, वो एक्चुअली में बैंक देखेगा कि ये तो 2,000 करोड़ ही रह गया है। तो बैंक कहेगा कि मैं इतना लोन नहीं दे सकता। अगर बैंक इतना लोन नहीं दे सकता तो आगे इन्वेस्टमेंट कम हो पाएगी। सो अगेन स्टॉक मार्केट का डायरेक्ट इंपैक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। ये तो हो गया बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए।
इवन फॉर स्मॉल, आज की डेट में स्टॉक मार्केट और इक्विटी जो हो गए हैं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अटेंडिंग दिस एफडीपी, किसी ना किसी का कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से कोई ना कोई रिलेशन जरूर रहा होगा। तो और अगर इक्विटी के साथ आपका रिलेशन है तो दैट मींस आपके लिए वो एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, और सेविंग इंस्ट्रूमेंट का अगर आपका प्राइस गिर रहा है तो आपकी कैपिटल इरोड कर रही है। अगर कैपिटल इरोड आपकी कर रही है तो आप ज्यादा खर्चे नहीं कर पाओगे। तो चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, अगर स्टॉक मार्केट में फॉल आ रहा है तो आपकी सेविंग्स पे और कॉर्पोरेट्स की इन्वेस्टमेंट एबिलिटी पे एंड ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंपैक्ट आता है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव क्या कहते हैं सेंटिमेंट बनता है इकोनॉमी के अंदर। और एक्सचेंज रेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इंडिया इज एन इंपोर्टिंग कंट्री। तो अगर हम बहुत ज्यादा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, अगर हमारा डॉलर जो है अगर वो अप्रिशिएट कर जाता है हमारे अगेंस्ट, या रुपी डिप्रिशिएट कर जाता है, तो उसका मेजर इंप्लीकेशन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी। इसके ऊपर भी आज हम डिटेल में बात करेंगे, पिछले कुछ टाइम से ये भी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। देन जब हम प्राइस एंड इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, तो प्राइस एंड इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स के अंदर हम क्या कहते हैं सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, फ्यूल प्राइसेस, फूड प्राइसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये प्रेशर गेजेस है। प्रेशर गेजेस क्यों है? क्योंकि ये स्पेशली ज्यादा हर्टफुल होते हैं जो पुअर लोग हैं। आज की डेट के अंदर भी अगर आप हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे देखिए 2023 का, तो इंडिया में 48% जो रूरल इंडिया में जो रूरल लोग रह रहे हैं उनमें से उनका अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो 48 रुपीज फूड पे जाता है। तो उनका जो फूड एक्सपेंडिचर है अपनी फूड बास्केट का, वो 48%, अपनी ओवरऑल बास्केट का जो है वो 48% है। इवन अर्बन एरियाज के अंदर भी अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो अराउंड 38-39 रुपीज जो है वो ऑन एन एवरेज वो खाने पे जा रहा है। तो जो फूड आइटम्स है आज की डेट के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, स्पेशली एक लोअर मिडिल क्लास और एक पुअर हाउस होल्ड के अंदर की फूड के प्राइसेस क्या हैं। दिस डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आज की डेट में 25 किलो फ्री मिल रहा है, बट ओवर एंड अबव भी चाहिए होता है, और उसका इम्पैक्ट गरीब लोगों के ऊपर काफी ज्यादा पड़ता है। फ्यूल का प्राइसेस सबके ऊपर पड़ता है, तो चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके ऊपर, स्पेशली इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो नीड टू आई मीन चेक। एंड जो लास्ट है सीपीआई, इसको आरबीआई डायरेक्टली ट्रैक करता है बिकॉज इट हैज अ मैंडेट अंडर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर आरबीआई का एक टारगेट रहता है कि इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में कंट्रोल करके रखना है। सो हम देखेंगे कि कैसे पिछले कुछ टाइम से ये कंट्रोल, कुछ टाइम पहले कंट्रोल से बाहर हो गया था, फिर वापस ये कंट्रोल के अंदर आ गया। एंड फाइनली हम जो लास्ट में बात करेंगे इस एफडीपी के अंदर, हम बात करेंगे वी दी पीपल, जिसके अंदर हम बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब पोस्टिंग, एनआरईजीए, एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, क्या कहते हैं हेल्थ ऑफ द पीपल, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस हमारा क्या हेल्थ स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स देखेंगे हम अपने हेल्थ के असेसमेंट के लिए। जब हम इनके बारे में बात करेंगे, तो हम वी दी पीपल के बारे में, हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में, पॉवर्टी इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, हेल्थ के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो टिपिकली हमारे उसके अंदर नहीं आते, क्या कहते हैं हेडलाइंस के अंदर नहीं आते, बट दीज आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आपको बताएगा कि इंसान हेल्दी है या नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा था, आपका न्यूट्रिशन और आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। whether you drink or not, whether you smoke or not has a huge impact on your health। ऐसे ही ये सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कई बार हम इग्नोर, हम कॉमन पार्लेंस में हम इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, बट ये होते बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट टू गिव यू वन स्टैटिस्टिक, पिछले 200 सालों में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो आज तक डेवलप हो गई जिसने हेल्थ और एजुकेशन पे पैसा ना खर्च किया हो। इनफैक्ट देयर आर कंट्रीज जिन्होंने 2-2, 3-3 बार अपने आप को डेवलप किया है। अब जर्मनी का एग्जांपल देखिए, जर्मनी ने इंडस्ट्रियली अपने आप को रेवोल्यूशनाइज किया 19th सेंचुरी में, फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में फिर इसने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज किया, और उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हारने के बाद फिर उसने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर लिया। तो एक कंट्री ऐसी भी है जिसने अपने आप को 3 बार इंडस्ट्रियलाइज कर लिया। जापान ने अपने आप को 2 बार इंडस्ट्रियलाइज किया। एक बार इट वाज द लास्ट वन टू इंडस्ट्रियलाइज इटसेल्फ इन 1885 और 1880s के अंदर, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होने के बाद वो फिर से अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज कर देती है। हमारे पास पिछले कुछ सालों में चाइना का एग्जांपल है, कोरिया का एग्जांपल है, ताइवान का एग्जांपल है। ये सारे कंट्रीज वो हैं जो हेल्थ और एजुकेशन में पैसा डालते हैं और उसकी वजह से ये डेवलप हुए हैं। और इंडिया में अंदर हम जब देखेंगे कि हमारी ओवरऑल, जब हम कहते हैं कि हेल्थ अच्छी है, जीडीपी अच्छा कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है,
बट हम बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो जाते हैं रियल ये सारे फैक्टर्स को लेके कि क्या हमारे यहाँ इनक्वालिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, क्या हम गेनफुली लोगों को एम्प्लॉय कर पा रहे नहीं कर पा रहे, हमारा हेल्थ और एजुकेशन के अंदर स्टेटस क्या चल रहा है। तो जो हम कहते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे, विकसित भारत बनने के लिए सिर्फ टॉप हेडलाइन नंबर नहीं चाहिए, हमें ये सारे नंबर्स का भी देखना पड़ेगा और इनफैक्ट इनको ज्यादा सुपीरियर मानना पड़ेगा। आज के डेट में ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन लेके आना पड़ेगा कि ये नंबर्स ज्यादा सुपीरियर हैं, इनके बिना डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है। rather than just just running behind the mirage of a GDP number, we should think about these factors as well. Then अब ये जो एक स्लाइड है, ये आपको बस एक ओवरव्यू देती है इंडियन इकोनॉमी का, और एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू देती है, ये आपको बताती है कि इंडियन इकोनॉमी में सब कुछ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी आप नीचे देखिए, नीचे आपको दिखाई देगा कि ये ईयर्स हैं और यहाँ पर है परसेंटेज शेयर। तो अब शायद से कई लोगों को पता हो कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो एग्रीकल्चर का जो शेयर था हमारे यहाँ पर जीडीपी के अंदर, वो कुछ 55% के अराउंड था। तो अगर आप देखेंगे कुछ यहाँ 1960 से डेटा है, ये 60 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये 5 ईयर मूविंग एवरेज है। अब मैं वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक पे नहीं जाना चाहता कि 5 ईयर मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, बट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम 55%, अगर आप 100 रुपए का सामान बना रहे थे तो 55 रुपए का सामान जो है वो एग्रीकल्चर में बन रहा था, और 25 रुपए का सामान जो है वो इंडस्ट्री सर्विसेज में बनता था, और अराउंड 20% का सामान जो है वो इंडस्ट्री में बनता था। अब नीचे जो है वो ईयर्स हैं और यहाँ पर जो है कि शेयर कैसे चेंज होता है। तो अगर आप ये ग्राफ देखें, पहले ये ग्राफ देखिए कैसे मूव करता है। तो अगर आप इंडिया का ये ग्राफ देखें मूव करते हैं, तो हमने ये देखा कि 1955 से लेके आज तक का हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कैसे, हमारा ग्रोथ का जो शेयर है वो कैसे रहा है। तो अगर हम देखें कि हमारा जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो कॉन्टिन्यूसली गिरता हुआ गया है। इनफैक्ट आज की डेट में पिछले 2 सालों में इंक्रीज होकर 17-18% पहुंच गया है, और इंडस्ट्री का शेयर जो है वो अराउंड 30-31% है, और सर्विसेज का शेयर जो है वो 53-54% है। इसमें अगर आप वो भी ऐड कर दीजिए, क्या कहते हैं सर्विसेज भी ऐड कर दीजिए, तो ये 60% को क्रॉस कर जाता है। अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ, 1990s के अंदर हमने हमारा हमारा क्या कहते हैं इकोनॉमी के अंदर एक हम बोलते हैं कि 1956 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड 5 ईयर प्लान, और दूसरा हम बोलते हैं कि 1991 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मनमोहन सिंह जी ने इंडियन इकोनॉमी को ओपन अप करना शुरू किया था, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लेके आए थे 1991 की, जिसके लिए हम इतनी ज्यादा क्या कहते हैं रेफरेंस में रखते हैं मनमोहन सिंह जी को। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब हमने अपने आप को शक्ल से निकाला, हमने अपने आप को ओपन अप किया, उसके बाद से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो कॉन्टिन्यूसली गिरता हुआ गया है, और सर्विसेज का शेयर जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता हुआ गया है, वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग का शेयर और इंडस्ट्रीज का शेयर जो है वो स्टैग्नेंट हो गया है। तो ये हमें एक बहुत ही आयरॉनिक चीज बताती है इंडिया के बारे में, कि इंडिया एक ऐसा देश है जो आज की डेट में सर्विस लेड इकोनॉमी बन गया है विदाउट बीइंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अब चाइना का भी एग्जांपल, हम अपने आप को चाइना से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, तो चाइना का ऐसा एग्जांपल नहीं है। चाइना ने पहले अपने आप को एग्रेरियन, अपना एग्रीकल्चर ठीक किया 1978 से 1984 के बीच में, और फिर 1984 से लेके उसने 30 साल मेहनत करी अपने इंडस्ट्रीज के ऊपर, और आज की डेट में वो इतना वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इनफैक्ट आज की डेट में यूएस को टक्कर देने की जो एबिलिटी देता है वो सिर्फ चाइना दे रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना अच्छा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, जो हमें भी करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, हमें भी अपना मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जो है हमें जीडीपी में बढ़ाना पड़ेगा, विदाउट विच हम नहीं कह सकते कि इंडिया जो है डेवलप कंट्री बन सकता है फ्यूचर में। तो ये आज भी एक इशू है इंडिया के साथ। अब टिपिकली जब हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं तो एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी और जीवीए क्या होता है। जीडीपी जो होता है वो डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी होता है, और जीवीए जो होता है वो सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी होता है। अब जीडीपी को हम जीडीपी भी एक्चुअली दो साइड से देखा जा सकता है। एक जीडीपी देखा जाता है कांस्टेंट प्राइसेस पे, और एक जीडीपी देखा जाता है करंट प्राइसेस पे। कांस्टेंट प्राइसेस का जीडीपी का मतलब होता है कि आप जीडीपी देखिए जीडीपी बोल क्या रहा है, जीडीपी बोल रहा है कि एक साल में आपके देश के अंदर डिमांड कितनी हुई, ठीक है।
अब डिमांड के बारे में बात कर रहा है तो डिमांड बेसिकली हो गई क्वांटिटी की 2024-2025 के अंदर कितना अमाउंट ऑफ गुड्स की डिमांड हुई। तो उसको आप दो चीजों से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो आप कहोगे कि मैं उसी साल के प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2024-25 के प्राइसेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आप 2024-25 की डिमांड के साथ में, तो आपके पास एक नंबर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इंडिया का करंट प्राइस का जीडीपी, वो आज की डेट में 324 ट्रिलियन रुपीज है। अब ये ट्रिलियन रुपीज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर हमारे यहाँ नंबर्स दे रखे होते हैं वो बड़े अजीब तरीके से दे रखे होते हैं। अगर आप देखिए कि जब आप कोई भी जीडीपी का डेटा पढ़ेंगे तो आपको एक नंबर नजर में आएगा, वो नंबर आपको सुनने में आएगा जिसको बोलते हैं हम लाख करोड़। अब वो हम बोलते हैं कि इंडिया की जीडीपी 324 लाख करोड़ है। अब ये 324 लाख करोड़ का मतलब क्या है? 1 लाख और करोड़ का एक साथ कनेक्शन कैसे आ रहा है? तो उसको हम 1 लाख करोड़ को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 1 लाख का मतलब होता है 5 जीरो और 1 करोड़ का मतलब होता है 7 जीरो। तो आई कैन राइट 1 लाख करोड़ एज, अगर आप थोड़ा सा मैथ सॉल्व करें तो 1 लाख करोड़ को हम लिख सकते हैं कि 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7। तो अगर आप इसको एक साथ लिखेंगे तो आप कह सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 12। 10 रेज़ टू द पावर 12 को हम एक ट्रिलियन भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए 1 लाख करोड़ को आप एक ट्रिलियन रुपीस बोल सकते हो। इसीलिए हमने 324 लाख करोड़ को हमने कहा कि 324 ट्रिलियन रुपीस है। और जब भी आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको 85 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा कि कितने डॉलर की हमारी इकोनॉमी है आज की डेट में। अब दूसरा चीज जो हम देखते हैं वो कांस्टेंट प्राइसेस से देखते हैं, जिसके अंदर हम 2011-12 के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि वो हमारा बेस ईयर है और उस हिसाब से हमारी जीडीपी जो है वो है 184 ट्रिलियन रुपीस। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारा क्या कहते हैं एग्रीकल्चर एक मेजर शेयर लेके जाता है। और जब सप्लाई साइड, जब हम जीवीए को देखते हैं तो जीवीए 3 साइड से देखा जाता है। जीवीए सप्लाई साइड का फिनोमेना है, जीडीपी डिमांड साइड का फिनोमेना है, और जीवीए हम 3 साइड से देखते हैं कि एग्रीकल्चर से कितना प्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्री से और सर्विसेज से। देन अब हम आज के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमें करंट चीजों के बारे में बात करनी है। हमें ये देखना है कि करंटली इकोनॉमी जो है वो क्या कर रही है। अब पिछले हफ्ते क्या हुआ है, पिछले हफ्ते इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक डेटा रिलीज हुआ पिछले लास्ट फ्राइडे। अब वो लास्ट फ्राइडे को डेटा क्या रिलीज हुआ, उसको हम जो लास्ट फ्राइडे 28 फरवरी को डेटा रिलीज हुआ है उसको हम बोलते हैं सेकंड एडवांस एस्टिमेट। अब ये एडवांस एस्टिमेट और इसका इम्पैक्ट क्या है और ये क्या बात हो रही है। हम बेसिकली अभी जो साल चल रहा है वो चल रहा है 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर, जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2024 को और खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। अब जब हम 7 जनवरी को पहुंच गए थे तो 7 जनवरी के अंदर इस साल में 9 महीने खत्म हो चुके थे। तो 9 महीने के डेटा के बेस के ऊपर आप क्या कहते हो कि यार मेरे पास 9 महीने का डेटा है, उसके बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि 2024-2025 के अंदर इंडियन इकोनॉमी में कितने की जीडीपी कितने से बढ़ेगी। तो जब हमने ये एडवांस एस्टिमेट लिया तो हमने कहा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 6.4% से ग्रो करेगी। तो एक तो सबको थोड़ा सा झटका लगा कि पिछले साल तो हम अच्छा ग्रो कर रहे थे, इस साल क्यों इतना ग्रो नहीं कर रहे हैं। अब उसका एक सेकंड एस्टिमेट आया। तो पहले हो गया आपने इसी साल का जो करंट रनिंग ईयर है आपने उसी का एक एस्टिमेट लिया और आपने कहा कि वो 7 जनवरी को आपने बोला 6.4% से ग्रो करेगा, जिसकी वजह से लोगों को झटका लगा कि यार हमारी इकोनॉमी पिछले साल तो अच्छी ग्रो कर रही थी, इस साल क्यों नहीं ग्रो कर रही। फिर आपने 28 फरवरी को फिर से उसी साल के बारे एक और महीने का डेटा आ गया, आपने फिर से एस्टिमेट लगाया, आपने कहा कि यार नहीं 6.4% नहीं 6.5% से ग्रो करेगी, बट पॉइंट 6.5% का नहीं है। अब इस टाइम पे आपने क्या किया, आपने जो पिछले साल का जो ग्रोथ रेट था 2023-2024 का जो ग्रोथ रेट था उसको भी आपने रिवाइज कर दिया। लास्ट ईयर आपने कहा था कि आप 8.2% से ग्रो करे हो, बट अब आपने कहा एकदम से कि लास्ट ईयर आप 8.2% से नहीं 9.2% से ग्रो कर रहे हो। तो आपने इस साल का ग्रोथ रेट तो जो एस्टिमेट किया वो किया, लास्ट ईयर का जो आपका ग्रोथ रेट था उसको भी आपने रिवाइज कर दिया और आपने कह दिया पिछले साल तो हम 9% से ग्रो करे थे। अब जब हम इतना ज्यादा ग्रोथ रेट में रिवीजन करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल मायनों में समझाऊं ये सारी टर्म्स क्या होती हैं, कि आप 2024-2025 का अगर आप डेटा देखें तो सबसे पहले हमें एडवांस एस्टिमेट मिलते हैं 7 जनवरी को। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को हमारे पास पहली बार पता चला कि इस साल में ग्रोथ रेट क्या होने वाली है। फिर उसके बाद 28 तारीख को हमने फिर से एक और असेसमेंट किया, फिर आपने कहा कि अच्छा ये ग्रोथ रेट होने वाली है। फिर उसके बाद एक प्रोविजनल एस्टिमेट आएगा 31 मार्च 2025 को, जब ये पूरा साल खत्म हो चुका है,
उसको हम बोलते हैं प्रोविजनल एस्टिमेट, क्योंकि हमारा पूरा साल खत्म हो गया तो हम कह सकते हैं कि यार हमने सोचा था 7% से ग्रो करेंगे, फिर एडवांस एस्टिमेट ने बताया नहीं 6.4% से ग्रो करेंगे, सेकंड एस्टिमेट ने बताया कि नहीं 6.5% से ग्रो करेंगे, और प्रोविजनल जब जब पूरा साल खत्म हो गया तो हमने कहा हाँ यार 6.6% से ग्रो कर रहे हैं। अब उसके बाद, क्योंकि ये अभी तक पूरा डेटा तो आपके पास अवेलेबल है, बट उसके बाद फिर से डेटा रिवाइज होता है। रिवाइज इसलिए होता है डेटा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने इकोनॉमी में नहीं ली। फॉर एग्जांपल अनलिस्टेड जो कंपनीज है उसका डेटा एमसीए के पास लेट पहुंचता है, तो अगले साल जनवरी में आप फिर से रिवाइज करोगे उस डेटा को, और आप कहोगे कि नहीं यार 6.76% नहीं 6.8%, 6.9% से एक्चुअली में ग्रोथ रेट हुई थी पिछले साल में। तो आप कई बार रिविजन करते हो, बट अगर आपका प्रोविजनल एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना शुरू हो जाए तो लोग कहेंगे कि यार आप झूठ बोल रहे हो। तो ये एक इशू इंडिया के अंदर भी आया है। इंडिया के अंदर अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा देखिए, ये क्वार्टरली ग्रोथ रेट चल रही है, तो इवन कोविड से पहले, ये कोविड वाला ईयर है, कोविड से पहले भी हमारा जो ग्रोथ रेट था वो गिर रहा था, जिसको हम बोलते हैं प्री पैंडेमिक स्लो डाउन। वो इसलिए गिर रहा था क्योंकि हमारे यहाँ स्लो डाउन चल रहा था इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम। बेसिकली इंडिया की जो एनबीएफसी थी उसके अंदर क्राइसिस था, उसकी वजह से स्लो डाउन था। अब उसके बाद कोविड का इम्पैक्ट आया, फिर उसके बाद हम बेस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि बहुत कम उससे ग्रो कर रहे थे, उसकी वजह से जब आप एक एग्जाम में बहुत पुअरली परफॉर्म करते हो और उसके नेक्स्ट एग्जाम में थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज आप एक एग्जाम देते हो जिसमें आपके 10 नंबर आए। अब उसके बाद आपको पता है आपके घर जाके पिटाई होने वाली है। अब नेक्स्ट, क्योंकि आप फेल हो गए, अब नेक्स्ट आपने एग्जाम दिया उसमें आपके 20 नंबर आए 100 में से, तब भी आप फेल हो, पिटाई तो आपकी फिर भी होगी, बट पिटाई से बचने का एक तरीका क्या हो सकता है? आप बोल सकते हो कि यार मेरा जो ग्रोथ, घर पे ये मत बताओ कि 20 नंबर आए, बोलो कि मेरा 100% इंप्रूवमेंट हुआ है। 100% इंप्रूवमेंट का मतलब 10 नंबर से 20%, तो 20 नंबर। तो इसीलिए सेम, क्योंकि आपका नंबर बहुत छोटा था इसीलिए जो आपका ग्रोथ रेट था वो बहुत हाई हुआ एकदम से, उसको हम बोलते हैं बेस इफेक्ट। फिर वापस नीचे आया, फिर वापस इंक्रीज हुआ, तो बेस इफेक्ट की वजह से वी सी की हमारी ग्रोथ रेट जो थी वो अच्छी थी। बट आज की डेट के अंदर जब हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट वापस थोड़ी सी मॉडरेट हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो क्या वो एक साइन ऑफ स्ट्रेस है इंडियन इकोनॉमी में? और ये दिखता है इंडिया की कंजम्पशन के अंदर, कि इंडिया की कंजम्पशन जब हम देखते हैं तो हम बेसिक इंडिया के पहले जीडीपी का नंबर हम देखते हैं, तो हम कहते हैं, जो मैं आपको कह रहा था कि इंडिया की स्टैटिस्टिक्स क्या ठीक से नंबर बता भी रही है कि नहीं बता रही है। हम लास्ट ईयर तक बोल रहे थे कि हम 8.2% से ग्रो कर रहे हैं, और इमीडिएटली इस साल हमने अब बोलना शुरू कर दिया है कि नहीं, पिछले साल हम 8.2% से नहीं 9.2% से ग्रो करें। तो ये जो इतना ज्यादा इंक्रीज आया है आपकी ग्रोथ रेट के अंदर पिछले साल में और इस साल के पिछले साल में, और जो जब आपने पिछले साल अपने बात करी थी अपने प्रोविजनल एस्टिमेट्स के बारे में, तो आपने कहा था 8.2%, और जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो आज की डेट में आप कह रहे हो 9.2%। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो एक शैडो क्रिएट करता है कि इंडिया का स्टैटिस्टिकल सिस्टम क्या ठीक से आपकी जीडीपी बता भी पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। और ये काफी ज्यादा दिखता है आपको कंजम्पशन के अंदर भी, क्योंकि कंजम्पशन भी आप पिछले बार बता रहे थे कि पिछले साल बता रहे थे कि 4% है, और अब आप रिवाइज करके बता रहे हो कि 5.5% है। इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों आ रहा है आपके पेपर के अंदर? इट इज लाइक आप पहले एक एग्जाम देने जा रहे हो, और एग्जाम में क्या कहते हैं, एग्जाम से आप बाहर निकल के आते हो और फिर उसके बाद आप अपने टीचर से पूछते हो कि मेरा एक बार पेपर देख लीजिए, तो वो आपका पेपर देख के बोलता है कि आप फेल हो रहे हो, और उसके बाद जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आप कह रहे हो, आपको पता चलता है कि आप टॉप कर रहे हो। तो इतना ज्यादा वेरिएशन थोड़ी ना आ सकता है कि आप एक जगह कह रहे हो कि इतना परसेंटेज और उसके बाद कह रहे हो इतना ज्यादा परसेंटेज उसी एग्जाम में हुआ। तो ये एक मेजर शैडो है इंडिया के स्टैटिस्टिकल सिस्टम के ऊपर कि क्या इंडिया का स्टैटिस्टिकल सिस्टम आपको ठीक से उसकी जीडीपी ही बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। ऑल्दो कुछ पार्ट एक्सप्लेन्ड होता है कि हाँ कुछ रिवीजन तो होगा ही होगा। सपोज टीचर ने आपको बोला कि आपके 50 नंबर आएंगे बट आगे आपके 60 नंबर, तो इतना वेरिएशन समझ में आता है, बट 50 नंबर के बजाय 80 नंबर आ जाए, ये वेरिएशन कई बार समझ के बाहर हो जाता है। तो ये एक इशू इंडिया की जीडीपी के साथ है। अगर हम जीवीए का क्या कहते हैं नंबर देखें और इंडिया का एग्रीकल्चर का नंबर देखें, तो इंडिया का एग्रीकल्चर पिछले 1-1.5 साल से ठीक नहीं कर रहा है। इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इरेटिक है और सर्विसेज सेक्टर भी काफी ज्यादा इरेटिक है पिछले 2 सालों में। बट जो अदर फैक्टर्स हैं, अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गए हमारे नॉर्मल जीडीपी जीवीए के फैक्टर्स।
अब हम बात करते हैं हमारे जो बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि क्यों पिछले कुछ टाइम से हमारी ग्रोथ रेट खराब चल रही है, क्यों हमारी स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि हमें जब बात करनी है तो हमें ओवरऑल जीडीपी के साथ साथ हमें और भी नंबर्स के बारे में बात करनी है, और भी फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करनी है जो बता रहे हैं कि हमारी हेल्थ अगर ऐसी है या प्रिकेरियस है तो क्यों है। उसमें सबसे बड़ी जो इशू आ रहा है वो आ रहा है ट्रम्प टैंट्रम। टैंट्रम क्या होता है? टैंट्रम होता है जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो टैंट्रम्स करते हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मैं टीवी नहीं देखूंगी। तो जैसे मेरा बेटा है वो कहता है कि नहीं जब तक मेरे लिए पेपा पिग नहीं लगाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो टैंट्रम जैसे थ्रो करते हैं बच्चे, जैसे थ्रो करते हैं, ट्रम्प के टैंट्रम चल रहे हैं। ट्रम्प कह रहा है कि मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं इसको भेज दूंगा वापस, मैं इसको वापस भेज दूंगा, कनाडा को ले लूंगा, ग्रीनलैंड को खरीद लूंगा। तो अब वो अपने वो अपनी अपने क्या कहते हैं अपने हिसाब से जो उसका सुबह मन करता है करने का वो बोल देता है सुबह आके। अब उसको उसको डील कैसे करना है, पहली बात तो ट्रम्प को, फिर उसके बाद वहां पर कोई इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, एंड ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे हो सकता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। अगर आप हमारे देश का टैरिफ देखिए, ये क्या है, ये ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे एवरेज अप्लाइड टैरिफ ड्यूटी है। आप इंडिया की ड्यूटी देखिए, यूएस की ड्यूटी देखिए, ईयू की ड्यूटी देखिए और चाइना की ड्यूटी देखिए। अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर हम ऑन एन एवरेज 13% की ड्यूटी लगा रहे हैं। यूएस कितनी ड्यूटी लगा रहा है? 3.6% की। ईयू कितनी लगा रहा है? 3.8% की। चाइना कितनी लगा रहा है? 6.6% की। दैट मीन्स हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्यूटी लगा रहे हैं। इनफैक्ट आज की डेट में हमारे पास ड्यूटी लगाने का स्कोप और भी ज्यादा है, हमारे पास ड्यूटी लगाने का 40% तक स्कोप है। तो हम अभी ड्यूटी इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगाते हैं। दूसरा एग्रेरियन प्रोडक्ट्स में देख लो, एग्रेरियन प्रोडक्ट्स में तो हमने 40% ड्यूटी लगाई हुई है बाहर के प्रोडक्ट्स पे, और बाकी सारी कंट्रीज की ड्यूटी रेट कितने कम है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, और ये अपॉर्चुनिटी कैसे है? क्योंकि हमने अपने आप को दुनिया से बचा के रखा। हम आत्मनिर्भरता में बोल रहे हैं कि यार हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम सब कुछ इंडिया में बनाएंगे। बट आज की डेट में प्रोडक्शन और कंजम्पशन इस तरीके से नहीं चलता है। आपकी डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है ही नहीं कि आप अपने आप को डेवलप इकोनॉमी बना लो। तो आज की डेट में अगर आपको कह रहे हो कि मुझे अपने आप को डेवलप इकोनॉमी बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो आपको दुनिया के साथ आपको उसको एक्सपोर्ट और उससे इंपोर्ट लेना पड़ेगा। और कोई भी देश अपने आप में सारे काम नहीं कर सकता, तो हमें ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट बनना है। आज की डेट में एक कंट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं होती। आज की डेट में हर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज मेड इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। तो इसीलिए जब तक हम ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं बनेंगे, जब तक हमारे यहाँ टैरिफ रेट्स कम नहीं होंगे, तब तक आप कैसे तब तक आप कैसे प्रोडक्शन करोगे। अब आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। मेरे पास बहुत अच्छा गार्डन घर पे बना हुआ है और मैं उस गार्डन को बहुत अच्छा और सुंदर भी बना सकता हूँ। बट मैंने क्या करा हुआ है, मैंने अपने घर के बाहर वरांडा के आगे बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। उस दीवारें खड़ी करने से क्या है, मुझे अपना हरा भरा तो दिखाई दे रहा है, बट दुनिया में और भी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, और भी बहुत अच्छे खेत हैं, और भी बहुत अच्छे गार्डन है, मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ। तो जब तक आप अपने 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 ये जो गार्डन की जो आपने बाउंड्री बना रखी है, जब तक आप उसको कम नहीं करोगे, तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा कि दुनिया में कौन कौन सा और प्रोडक्शन चल रहा है और लोग गार्डन कैसे बना रहे हैं, और लोगों को भी आपके बारे में नहीं पता चलेगा। तो हमें साइमल्टेनियसली टैरिफ रेट्स जो है हमें कम करने पड़ेंगे, और हमें अपनी कंपनीज को भी बाहर की कंपनीज के साथ एक्सपोजर लेना पड़ेगा। मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल बताता हूँ। चाइना जो था वो मैन्युफैक्चरिंग हब स्पेशली कहते हैं फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कैसे बना। पहले चाइना जो था वो कॉपी करके ये क्या कहते हैं यूएस के प्रोडक्ट्स बनाता था। अब यूएस के प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट बनाते वहां के लोगों को लगा कि यार ये हम आईफोन बना रहे हैं आज के डेट में, असेंबल कर रहे हैं, क्यों ना हम अपना खुद का मैन्युफैक्चर, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स है, क्यों ना हम खुद का फोन बनाएं। और फिर वहां से आपको दिखता है कि बहुत सारी कंपनीज फोन की वहां मैन्युफैक्चर आने शुरू हो गई। सैमसंग तो खैर कोरियन है, बट ये आपका ओप्पो, वीवो, ये सारी की सारी कंपनीज आनी शुरू हुई और इन्होंने सैमसंग जैसे प्रोडक्ट्स को भी टक्कर दी। और आज की डेट में वर्ल्ड के आई मीन बेस्ट क्वालिटी आपके पास प्रोडक्ट्स चाइना के अंदर बनते हैं। तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब आप दुनिया के अंदर आप प्रोडक्शन का पार्ट थे, आपने इजी इंपोर्ट और इजी एक्सपोर्ट पॉलिसी रखी हुई थी। यस, उसका इम्पैक्ट हमारे छोटे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर पड़ेगा, बट उनको सपोर्ट करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे कम्पीट कर पाए। बट हमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रखनी पड़ेगी, ये दीवारें खड़ी करके नहीं हमारा काम चल सकता।
और इसी का एग्जाम्पल है कि हम दिखते हैं, अगर हम इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का शेयर देखो जीडीपी में, तो 2008-9 के बाद से वो गिर रहा है। ये एक टाइम पे 18-19% जीडीपी का होता था, आज की डेट में सिर्फ 14% रह गया। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो होना चाहिए। हमारा इनफैक्ट ये जीडीपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ना चाहिए, हमारा एक्चुअली में कर रहा है, जिसको हम कई बार बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है इंडिया की आज की डेट के अंदर। और हमारा एक्सपोर्ट जो भी है वो ग्लोबल लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हमारे एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और की इश्यूज क्या है कि हमारे बहुत ज्यादा हाई टैरिफ रेट्स हैं, एग्रीकल्चर में भी हमारा बहुत ज्यादा हाई टैरिफ रेट्स हैं, और अभी भी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि हमारे जो बाउंड टैरिफ रेट है, कितना आप टैरिफ इंक्रीज कर सकते हो, वो अभी भी रेट ज्यादा है। तो आप अपना 13% की जगह 40% भी अभी रेट कर सकते हो। और जब आपको पता है कि आपका 13% से ज्यादा भी इंक्रीज हो सकता है, तो कोई इन्वेस्टर क्या सोचेगा? कोई इन्वेस्टर सोचेगा यार इंडिया का तो पता ही नहीं है कि कब जाके अपना टैरिफ बढ़ा दे, तो इसलिए इन्वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। सो इसीलिए ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। और फिर उसके बाद हमारा जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट इस साल के बजट में 2025 के बजट में अपने को टैरिफ को रैशनलाइज करना शुरू किया है। नहीं तो बहुत सारे टैरिफ रेट्स होते थे इंडिया के अंदर, बहुत सारे सेस होते थे, और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भी ले आते थे, जिसमें एक नॉन टैरिफ बैरियर आप लेते थे कि नहीं यार ये क्वालिटी ठीक नहीं है, इसलिए इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। सो ये सारे फैक्टर्स की वजह से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था इसके एक्सपोर्ट का। तो ये सारी करंट प्रॉब्लम्स है इंडिया की, और ये सारे सजेस्टेड सॉल्यूशंस हैं। देन अभी निशांत, कैन वी टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स? मैं भी एक बार सांस ले लूं, फिर उसके बाद विल कंटिन्यू। Sure, sir. Sure. No issue, sir. So we'll resume in 2 minutes. Okay, sir. ऑलराइट, तो हम वापस स्टार्ट करते हैं। नाउ अब एक और चीज हुई है पिछले कुछ टाइम से, जब क्योंकि हम फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि और हमने कहा था कि ये फाइनेंस जो है एक आर्टरी, एक बेसिकली ब्लड स्ट्रीम है, और इस ब्लड स्ट्रीम में कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो आपकी इकोनॉमी में इशू होगा। और पिछले कुछ सालों से, पिछले स्पेशली कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर जो है मार्केट के अंदर काफी ज्यादा आ गया है, और और स्टॉक और इक्विटी जो है वो आज की डेट में एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट बन गया है। जैसे एक टाइम पे हम एफडी करते थे, आज की डेट में हम एसआईपी करना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो इंडिया की सोसाइटी को भी हम इम्पैक्ट करता है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट कैसा कर रही है। अब इंडिया की स्टॉक मार्केट की जो हेल्थ है, उसके अंदर हम देखते हैं, अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में, स्पेशली आफ्टर अक्टूबर ऑफ 2024, हमारी स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिरी है एज कंपेयर टू अदर पीयर्स। और वो इसी तो अगर आप देखिए सितंबर में आपका निफ्टी जो था वो 26,000 था, और सेंसेक्स जो था वो 85,000 था, और उससे गिर के काफी ज्यादा आज की डेट के अंदर करेक्शन आया है मार्केट के। स्पेशली अगर आप देखिए कि जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप है, उसके अंदर 20% का आपके यहाँ करेक्शन आया। अब ये करेक्शन का रीजंस क्या है, और अराउंड $1 ट्रिलियन का जो वेल्थ जो है वो वाइप आउट कर गई है मार्केट से। अब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्टर ये हम ये भी देखेंगे कि क्यों हुआ है ये। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पहला रीजन है कि इंडिया का जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था, और जो सेकेंड क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट आया था, वो भी कोई बहुत खास नहीं आया था। सेकेंड क्वार्टर का ग्रोथ रेट जो है वो 30 नवंबर को रिलीज हुआ था, और 30 नवंबर को हमें पता चल गया कि यार जीडीपी जो है सेकेंड क्वार्टर की कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। तो ये एक मेजर फैक्टर था कि क्या कहते हैं कि लोगों को बताया कि यार हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज थी कि अब ट्रम्प भी इलेक्ट हो चुका था, तो उसकी वजह से भी लोग, एफपीआई जो है वापस जाना चाह रहा था, क्योंकि उनको पता है कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी लेके आ रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन हो रहा है, और रुपी जो है वो भी अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। तो जो आप से डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, और इंडिया की करेंसी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब आप वापस बेचने जाते हो तो आपको पता चलता है कि यार डॉलर तो और महंगा हो चुका है। तो इट इज नॉट मेकिंग सेंस फॉर अ लॉट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो अंडरलाइन करेंसी है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो,
वो भी आपकी वीकन अप होती जा रही है। तो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स हैं जो लेके आ रहे हैं कि आपका ग्रोथ रेट, आपका स्टॉक मार्केट से पैसा क्यों एफपीआई खींचे जा रहा है। अब यूएस की फेडरल पॉलिसी जो है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी क्या कहते हैं हाई है। उनका कट्स जो थे वो अज्यूम हो रहे थे कि इस साल में 3 से 4 कट करेंगे, बट क्योंकि अब वहां पर जो उनकी टैरिफ पॉलिसी है वो इस तरीके से है कि वो अपना टैरिफ बढ़ाएंगे और टैरिफ बढ़ने की वजह से वहां पर इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा हो सकता है, इसीलिए जो उनका इंटरेस्ट कट था, एक्सपेक्टेड था, वो इंटरेस्ट कट नहीं हो रहा है, विच मीन्स कि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा हाई रहेगा। अब यूएस वाला जो है वो इंडिया के अंदर कोई भी एफपीआई जो है या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में इसलिए पैसा लगाता है क्योंकि इंडिया में ज्यादा रिटर्न मिलता है, बट रिटर्न के साथ में इंडिया के अंदर रिस्क भी है क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। बट यूएस के अंदर ज्यादा कोई रिस्क नहीं है। तो अगर यूएस के अंदर आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मान लो इंडिया में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यूएस के अंदर 5% मिल रहा है, बट आपको पता है कि वो 5% इज मच बेटर देन यहाँ पर 7%, क्योंकि यहाँ पर 7% रिस्क के साथ है। तो इसकी वजह से इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो होता जा रहा है और कैपिटल आउटफ्लो की वजह से क्या कहते हैं डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है और सारी की सारी इकोनॉमीज, मैं भी सिर्फ इंडिया की नहीं बाकी सारी इकोनॉमीज भी आपको दिखाऊंगा, उन सारी इकोनॉमीज के अंदर वो सारी लेस अट्रैक्टिव होती जा रही है। और यूएस की जो टैरिफ पॉलिसी है ऑन चाइना, इंडिया, मेक्सिको, कनाडा, ये सारे ग्लोबल कंसर्न्स लेके आता जा रहा है और इंडिया के ऊपर भी उन्होंने कहा कि वो टैरिफ लगाएंगे। और अगर आप देखिए यहाँ पर देखिए ये मार्केट्स बता रहा है आपको, अगर आप बीएसई ये जो डार्क ब्लू वाली है ये बीएसई है कि सितंबर से लास्ट ईयर से कैसा चल रहा है, ये निफ्टी है आपकी ये भी गिरी है। और अगर आप स्टैंडर्ड एंड पुअर बीएसई मिड कैप देखिए तो सबसे ज्यादा गिरी है। तो यहाँ पर मेजर करेक्शंस आए हैं एज कंपेयर टू यूएस के अंदर जो मार्केट जो है इंप्रूव करी है क्योंकि लोग यूएस के अंदर और भी ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, उनको लग रहा है कि यूएस इज राइट नाउ एट अ बेटर पोजीशन। सो ऑल दीज फैक्टर्स, तो हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं, उनको ये भी लग रहा था कि इंडिया की मार्केट जो है वो ज्यादा फ्रॉथी है, ज्यादा क्या कहते हैं उनके उनके ऊपर जो क्या कहते हैं वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो फ्रॉथी का मतलब एक तरीके से आप ये देख लीजिए कि जैसे आप लस्सी अगर आप बनाते हैं तो लस्सी बनाने के बाद जो ऊपर झाग रह जाती है, अब आप झाग के ऊपर जो 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 झाग वाला एरिया वो फ्रॉथी एरिया है, तो एक्चुअल में जो वैल्यूएशन जो कंपनी की है वो होनी चाहिए से 1000 रुपए का शेयर, बट क्योंकि मार्केट के अंदर इस तरीके से कई बार डिमांड एंड सप्लाई होता है कि सारे कहते हैं पैसा लगाओ, हर कोई सट्टा खेल रहा है। जैसे जस्ट लाइक ड्रीम 11 के अंदर हम टीम लगाते हैं, वैसे आज की डेट में ग्रो और जीरोधा वाली एप्स के थ्रू हम स्टॉक्स खरीद रहे हैं। तो हम बेसिकली गैम्बलिंग कर रहे हैं और बेटिंग कर रहे हैं, जस्ट लाइक वी आर प्लेइंग अ गेम। तो उसकी वजह से क्योंकि डिमांड ऑफ सर्टेन स्टॉक्स हैव इंक्रीज्ड मच मोर देन इट्स एक्चुअल वैल्यूएशन, जो जिसको हम प्राइस टू इक्विटी रेशियो भी देखते हैं कि प्राइस ऑफ टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ज्यादा हाई थी। और जो आपको बताता है कि कई स्टॉक्स जो थे वो ओवर वैल्यूड थे, और ये दिखा रहा है आज की डेट के अंदर ये जो गिरावट हुई है मार्केट के अंदर, ये दिखा रहा है कि आपकी वैल्यूएशन ज्यादा हाई थी। आपका रियल सेक्टर जो है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के हिसाब से उस कंपनी की वैल्यू होनी चाहिए 1000 रुपए का शेयर, अब आप उसको 2000 रुपए का शेयर के साथ ट्रेड कर रहे थे अक्टूबर के अंदर, अब वो वापस गिर के 1100-1200 रुपए हो गया, विच इज द राइट असेसमेंट ऑफ दिस। So this is one of the reasons that is there. Then domestic investor institutional investor भी आज की डेट में पहले तो उन्होंने काफी एब्जॉर्ब किया ये सारी चीजें कि बाहर की मार्केट, बाहर वाले लोग जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम अपनी मार्केट में इन्वेस्ट करें रखेंगे, बट आज की डेट में ये भी कम हो गया, एसआईपीस का फ्लोज भी कम हो गया। और अगर आप देखिए कि कौन से सेक्टर में परफॉर्मेंस ज्यादा गिरा है, वो मेजरली आईटी सेक्टर में, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई का इम्पैक्ट है सब ज्यादा इस सेक्टर के ऊपर गया है और डिमांड भी कम हो रही है। एंड मिड कैप के बारे में बता चुका हूं मैं, ऑटो सेल्स के बारे में और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में। अगेन क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड इकोनॉमी के अंदर ज्यादा अच्छी नहीं रही है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है, और उसका इम्पैक्ट जो है आपको ऑटो सेक्टर के अंदर और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के अंदर पड़ता है, क्योंकि आपको इकोनॉमी की कंजम्पशन के बारे में बताता है। सो ये सारे फैक्टर्स वो थे जिसकी वजह से आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी की स्टॉक मार्केट गिर रहा था। एक और मेजर जो इशू हुआ है इकोनॉमी के अंदर वो है रुपी डिप्रिसिएशन और लिक्विडिटी का क्राइसिस। अब ये भी उसी से रिलेटेड है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो डॉलर का डिमांड कर रहे हैं, पूरी दुनिया डॉलर का डिमांड कर रही है जब से ट्रंप आया है। तो डॉलर की डिमांड की वजह से डॉलर का प्राइस तो बढ़ जाएगा, जब डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो रुपये का प्राइस घट जाएगा। तभी आप देख रहे हैं कि 81-82 रुपीज से आज की डेट में 87 रुपीज हो गया। और ये तो तब हुआ है जब आरबीआई ने मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरवेंशन करी है। पिछले 6 महीने में आरबीआई जो है अराउंड 60 से
70 बिलियन डॉलर का जो का अमाउंट जो है वो मार्केट में पंप कर चुका है। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है कि क्या कहते हैं, डॉलर की क्योंकि डिमांड बढ़ रही है इसलिए डॉलर का प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है। बट अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी जो क्या कहते हैं, डॉलर का अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारी चीजें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी, हमारे इंपोर्ट्स महंगे होने शुरू हो जाएंगे। तो उसको कम करने के लिए, उसको उसकी वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए आरबीआई ने मार्केट के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी। अब जब डॉलर की सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ाएंगे तो रुपी की क्या कहते हैं, रुपी खरीद के ही डॉलर की सप्लाई करोगे मार्केट के अंदर ही। तो उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी का एक क्राइसिस आ गया कि आरबीआई जो है डॉलर की सप्लाई करी जा रहा है और रुपी जो है उसको इकोनॉमी से निकाले जा रहा है। तो जब आप किसी चीज की सप्लाई करोगे तो रुपी बाहर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक क्रेडिट साइकिल, क्रेडिट एंड पे एक क्राइसिस आ रहा है। और वो क्रेडिट एंड पे क्या क्राइसिस है कि बैंक्स के पास पैसा ही नहीं बचा है लेंड करने के लिए, क्योंकि आरबीआई की इंटरवेंशन की वजह से उसने मार्केट से रुपये हटा दिया और डॉलर डाल दिया है, क्योंकि वो डॉलर को 100 रुपए नहीं होना देना चाह रहा था। तो अगर हम देखें तो ये सिर्फ इंडियन यूएसडी वर्सेस आईएनआर अगर आप देखिए, सिर्फ यही नहीं डिप्रिशिएट हुआ है, इसका ऊपर जाने का मतलब कि डॉलर महंगा हुआ है। तो अगर आप यूरो को देखिए, अगर आप जापानीज येन को देखिए, अगर आप चाइना के युआन को देखिए, सारी करेंसीज देखिए, सारी की सारी करेंसीज जो है वो डिप्रिशिएट करी है। ऐसा अकेला कंट्री इंडिया नहीं है जो सिर्फ डिप्रिशिएट किया है। तो बट उसका इम्पैक्ट इंडिया के बैंक सेक्टर पे इनडायरेक्टली पड़ा है, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, रुपी को सपोर्ट करने के लिए आरबीआई ने मार्केट से रुपी हटा दिया और डॉलर मार्केट के अंदर डाल दिया। अब उसके चक्कर के अंदर तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबल टेंशन एंड यूएस इकोनॉमिक स्लो डाउन, उन सारे फैक्टर्स की वजह से रिस्क एपेटाइट जो है वो खत्म हो गया है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा आपका एफपीआई ने बाहर निकाल लिया। अब उसको स्टेबलाइज करने के लिए अभी हाल ही में 28 फरवरी को आरबीआई ने $10 बिलियन का एक स्वैप अग्रीमेंट किया है। ये स्वैप अग्रीमेंट क्या होता है? इसमें आप बेसिकली आप बैंक से बोलते हो कि क्या कहते हैं, मुझे आपके पास बैंक से $डॉलर पड़े हैं मान लीजिए, तो बैंकों से 10 बिलियन डॉलर वर्थ डॉलर खरीद लिए और उनको रुपी दे दिया, और उनको बोला कि कुछ टाइम बाद से 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद मैं आपको ये आपको डॉलर वापस कर दूंगा, आप मुझे रुपी वापस कर देना। तो इसको बोलते हैं स्वैप अग्रीमेंट, कि अभी के लिए मुझे ये चाहिए, अभी के लिए मुझे वो चाहिए। तो जब आपने $10 बिलियन का आपने स्वैप करा, तो आज के डेट में आरबीआई ने $10 बिलियन मार्केट से खींचा, और उसकी वजह 10 बिलियन रुपीज इंडिया के अंदर, $10 बिलियन वर्थ रुपीज इंडिया के अंदर मार्केट के अंदर डाल दिए। तो जिसकी वजह से लिक्विडिटी आपकी एक्सपैंड कर जाएगी। अब लिक्विडिटी एक्सपैंड हो जाएगी तो बैंक्स के पास जब पैसा होगा तो बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जीडीपी वापस रिवाइव कर सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स वो हैं जिसकी वजह से आपकी वापस क्या कहते हैं, इकोनॉमी के अंदर आपने इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश करी है। तो ये सारे वो करंट फाइनेंशियल फैक्टर्स थे, ये सारे वो करंट इश्यूज थे जो हमारी इकोनॉमी में बता रहे थे कि क्या चल रहा है। अब हम कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इंपॉर्टेंट सेक्टर ये इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन में एक तो ये हमारे जीबीए में 18% कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आज की डेट में 45% लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं, इंडिया का जो वर्कफोर्स है, इंडिया का वर्कफोर्स क्या होता है, वो लोग जो काम चाहते हैं और जो काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जो वर्कफोर्स है करीबन अराउंड 550-600 मिलियन लोगों का है। इसका मतलब है कि 55 करोड़ से 60 करोड़ के बीच के अंदर लोग इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। अब ये जो काम कर रहे हैं 55 से 60 करोड़ लोग, उसमें से 45% लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, जिसका, और इनडायरेक्टली अगर आप देखिए तो और भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो 250 से 270, इनफैक्ट 270 से 280 मिलियन लोग, 28 करोड़ लोग, 27-28 करोड़ लोग इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस आप देखते कैसे हो? एक तो होता है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन का डेटा देखिए, मैं उस डेटा में इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि वो डेटा जो है बहुत बाद में आता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डेटा आता है वो आता है सोइंग का डेटा। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन जो होगी वो तो सोइंग के बाद ही होगी ना, फसल तो तभी कटेगी, पहले तो सो करोगे, पहले तो उसको उगाओगे। तो उगाने का डेटा हमें मिलता है, और राबी और खरीफ दोनों का मिलता है डेटा, और वो हमें बताता है। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये नीचे हर हफ्ते का डेटा हमारे पास रिलीज होता है। यहाँ पर सितंबर 22 तक का है, बट मेरे पास डेटा जो है वो अभी 2000
24 तक का भी है, क्योंकि अभी खरीफ सीजन 2025 शुरू नहीं हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या बता रहा है, ये आपको ये जो नंबर्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि एज कंपेयर टू पिछले 5 साल, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, एज कंपेयर टू पिछले 5 साल आपकी प्रोडक्शन, आपकी जो सोइंग है, जो आपने क्या कहते हैं सो किया है खरीफ सीजन में, वो कितना एरिया सो किया है। और अगर आप देखिए कि ये जैसे फॉर एग्जांपल जून ऑफ 2019 है और फिर उसके बाद ये सीजन खत्म हो जाता है सितंबर ऑफ 2019 तक, तो सितंबर ऑफ 2019 तक आपने 100% अपना एरिया सो कर लिया था। तो अगर मैं पिछले 5 साल का एवरेज लूं और पिछले 5 साल का जो भी एवरेज था वो पूरा का पूरा हमारा, से हमने पिछले 5 साल में 200 करोड़ है से 200 हेक्टेयर मान लीजिए कि मैंने, ये 100 हेक्टेयर मान लीजिए, 200 हेक्टेयर मान लीजिए, 200 ज्यादा बेटर एग्जांपल होगा। मैं पिछले 5 साल से 200 हेक्टेयर की एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 200 हेक्टेयर में अपने लैंड में मैं उगाना सो करता था। इस साल अगर मैंने पिछले 5 सालों वाला एवरेज अगर अपना सेम कर लिया तो वापस 200 हेक्टेयर कर लिया। 200 हेक्टेयर का मतलब मैंने पिछले साल वाले जो टारगेट थे उसको 100% अचीव कर लिया। और अगर आप कोविड ईयर देखिए तो कोविड ईयर में आपको दिखाई देगा कि पिछले 5 साल का एवरेज से ज्यादा आप कर रहे थे, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन की वजह से लोग ज्यादा गांव गए और गांव जाके उन्होंने ज्यादा प्रोड्यूस किया। और सेम पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि हम खरीफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये आपको डेटा जो बता रहा है, ये आपको रियल टाइम डेटा बता रहा है। इनफैक्ट जब मैं लाइवास्ता में लेक्चर लेता हूं तो मैं ये वाला डेटा सेट जो है उसका एक अलग डैशबोर्ड बनवाता हूं, जिसमें मैं कहता हूं कि जो कलेक्टर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सोइंग किस हिसाब से चल रही है। अगर पिछले साल कितनी थी तो इस साल कितनी है। मेरे यहाँ जो रिजर्वॉयर्स जो हैं वो पिछले साल कितने थे, इस साल कैसे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपका एनी काइंड ऑफ डिसीजन लेने के लिए, और वो भी रियल टाइम पे लेने के लिए कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो आपको रियल टाइम पे पता चल जाएगा इस बेस इस डेटा से। ऐसे ही हमारे पास खरीफ का भी सीजन होता है, जैसे सॉरी राबी का भी सीजन होता है। जैसे वो पिछला खरीफ का था ऐसे ही राबी का था। तो राबी और खरीफ के प्रोडक्शन के डेटा को हमें रियल टाइम बेसिस बताते हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कितने होने वाली है, जिससे आप ये भी एस्टिमेट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन होगी या नहीं होगी। अगर इन्फ्लेशन होगी, अगर आपके यहाँ प्रोडक्शन कम हुई है तो उसका मतलब आपका आउटपुट भी कम होगा, आउटपुट भी कम होगा तो उसका मतलब इन्फ्लेशन भी हो सकती है। तो सरकार को पहले से ही प्री डिटरमिन्ड उसके अंदर इंटरवेंशन के लिए रेडी हो जाना चाहिए। तो एग्रीकल्चर ऐसे एरिया जहां पर डेटा एनालिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपको वहां पर लोगों को हाई इन्फ्लेशन से बचाना है तो। देन इंडस्ट्रीज को देखने के लिए हम कई डेटा सेट्स लेते हैं। इंडस्ट्रीज को देखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया पीएमआई का डेटा सेट होता है, इंडेक्स ऑफ क्या कहते हैं परचेजेस मैनेजर्स इंडेक्स। परचेजेस मैनेजर इंडेक्स जो होता है वो अगर 50 से ऊपर होता है तो हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है एक्सपैंड कर रही है, और 50 से कम होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इसके दो फ्लेवर आता है, एक प्रोडक्शन का आपका पास आता है और एक मैन्युफैक्चरिंग का आता है और एक सर्विसेज का पीएमआई आता है। और दोनों डेटा सेट हमें अभी आज की डेट में बता रहे हैं कि हम 50 से काफी ज्यादा ऊपर चल रहे हैं। इवन दिसंबर के डेटा का भी बता रहा है कि हमारा काफी अच्छा कर रहे हैं। इवन जनवरी का डेटा भी बता रहा है कि अच्छा कर रहे हैं। गिर रहा है हमारे टॉप लेवल से, बट अभी भी 50 से ऊपर ही है आज की डेट के अंदर। देन आईआईपी का जो डेटा है वो भी हमें ये बता रहा है कि हमारा प्रोडक्शन जो है वो अब अच्छा ठीक ठाक होने लग गया है। बट आईआईपी का डेटा काफी म्यूटेड चीजें बताता है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो ये एक और डेटा सेट है जो आपको रियल टाइम पे बताएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सेट जो होता है जो आपको रियल टाइम इकोनॉमी के बारे में बताता है वो होता है कि आपकी कंट्री के अंदर क्या कहते हैं ये कैसा चल रहा है, सेल्स कैसी हो रही है, स्पेशली व्हीकल्स की सेल, क्योंकि ये आपको मिडिल क्लास के बारे में बताता है। और अगर हम इंडिया की मिडिल क्लास की सेल्स के बारे में देखें तो हमें दिखता है कि इंडिया की मिडिल क्लास की सेल्स पिछले 10-12 सालों में कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, जो बताता है कि हमारे यहाँ अमीर तो अमीर हो रहा है, जो हायर क्लास है, जो टॉप रिच क्लास है वो उसको तो बहुत फायदे हो रहे हैं, बट जो रियल मिडिल क्लास है उसको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। और वो हम अभी इनइक्वालिटी के डेटा से वापस देखेंगे कि अगर ऐसा हो रहा होता तो इंडिया में ज्यादा 2 व्हीलर्स की डिमांड हो रही होती, ज्यादा 4 व्हीलर्स की डिमांड हो रही होती। तो डिमांड तो हो रही है बट जीडीपी के हिसाब से जो डिमांड होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। सो ये एक साइलेंट काइंड ऑफ क्राइसिस भी बताता है 2 व्हीलर और पैसेंजर कार्स को लेके। सेम ऐसे ही फर्टिलाइजर का डेटा होता है। फर्टिलाइजर का डेटा भी आपको रियल टाइम बेसिस पे बता सकता है कि इकोनॉमी कैसे कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी आपको काफी सारी चीजें बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं डेटा वापस आपको दिखाऊंगा। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आपको बता रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया का जो है वो काफी अच्छा बढ़ना शुरू हुआ है, स्पेशली फॉर वुमेन। अगर आप देखिए, पहली बात तो ये है क्या डेटा
ये डेटा आपको बता रहा है कि इंडिया में अगर 100 वुमेन थी 2017-2018 में, तो उन 100 वुमेन के अंडर, उन 100 वुमेन के बीच में सिर्फ 18 वुमेन ऐसी थी जो या तो क्या कहते हैं 18 वुमेन ऐसी थी या तो वो काम कर रही थी या करना चाह रही थी। आज की डेट के अंदर 2023-2024 में अगर 100 औरतें हैं 15 से 60 के एज ग्रुप के अंदर, तो 35 ऐसी औरतें हैं जो या तो काम कर रही हैं या करना चाहती हैं। अब टिपिकली हमारे लिए तो हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि यार पहले 18 ऐसे ऐसी औरतें थी जो काम कर रही थी या करना चाहती थी, अब 35 है। बट ये क्राइसिस का सोर्स भी है। ये क्राइसिस का सोर्स कैसे है, ये हमें ये भी बता सकता है कि इंडिया के अंदर स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर औरतें बाहर निकल के काम कर रही हैं, क्योंकि शायद से घर की जो इनकम है कोई बहुत ज्यादा नहीं है और क्राइसिस आ रहा है घर के अंदर, इसीलिए औरतों को मजबूरन घर से बाहर निकल के काम करना पड़ रहा है। ये एक इकोनॉमिस्ट एक नया तरीके का एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये जो क्या कहते हैं वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये इंक्रीज होना कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। ये स्ट्रेस का साइन भी हो सकता है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल भी हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंक्रीज किया है। और क्या कहते हैं कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अगर हम देखें, तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में गिरा हुआ है। आज की डेट में ये 3.5% के अराउंड हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखिए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप देखिए यंग एज के लिए जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो यंग एज के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं आज की डेट में भी बहुत ज्यादा 10% जो है 15 से क्या कहते हैं 30 की एज ग्रुप में 10% लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ऐसे हम एनआरईजीए का भी डेटा एक्चुअली देख लेते हैं। फिर मैंने आपको प्रेशर गेजेस में आपको बोला था कि प्रेशर गेजेस भी देखेंगे। प्रेशर गेजेस में इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर गेज होता है। उसके अंदर हम देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि 2 से 6% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन रहे। बीच बीच में कुछ कुछ टाइम में हमारा इन्फ्लेशन ऊपर गया था, जैसे फॉर एग्जांपल अक्टूबर के अंदर वापस हमारा इन्फ्लेशन ऊपर गया था, बट अब हम इन्फ्लेशन को धीरे धीरे कंट्रोल में करना ले आए हैं। वापस इसको हम 4% के अराउंड खींचना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ऐसे ही डब्ल्यूपीए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, बट उसमें वेरिएशन और भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सीपीआई, क्योंकि दोनों की बास्केट के अंदर काफी डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ये तो हो गए हमारे इकोनॉमिक नंबर्स। किसी को अगर इकोनॉमिक नंबर्स में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको वी दी पीपल वाले आपको आर्ग्यूमेंट्स कराऊंगा कि सिर्फ ये इकोनॉमिक डेटा नहीं, आपको बहुत सारे और इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स देखने पड़ेंगे अगर आपको इस इकोनॉमी की रियल हेल्थ को एसेस करना है। यहाँ तक अगर किसी को सवाल है तो प्लीज आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। Participants, in case of any question, you can post in the chat box, or you can also raise your hand so that we can unmute you. तो दैट मीन्स हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes. अब हम लास्ट पार्ट ऑफ दी उसके ऊपर हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि वी दी पीपल एंड व्हाट वी केयर अबाउट। तो इसके अंदर हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने अभी काफी डीपर डिस्कशन ऑलरेडी किया है, बट हम फिर से करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट और भी किस तरीके से हम देख सकते हैं। पॉवर्टी इनइक्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे, हेल्थ के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। अब सबसे पहले जब हम पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं, अब इंडिया की आप पॉवर्टी के एस्टिमेट्स देखिए, तो इंडिया के पास आज की डेट में एक नया क्वेश्चन को एंड में फिर से आंसर करता हूं। Okay, sir. Okay, sir. ठीक है। नाउ अब पॉइंट इज कि जब हम पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं, तो पॉवर्टी के अंदर हमारे पास एक पुराना एस्टिमेट होते थे जो हमारे कैलोरी बेस्ड एस्टिमेट्स होते थे।
फॉर एग्जांपल इंडिया में पहले एक लागडा वाला कमेटी थी, उससे पहले एक वाई की अलग कमेटी थी, फिर लागडा वाला कमेटी आई, फिर तेंदुलकर कमेटी आई, फिर से सी रंगराजन की एक कमेटी आई, और आज की डेट में हम नीति आयोग का एक इंडेक्स फॉलो करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब वो इंडेक्स कहता है कि इंडिया में अराउंड 11% लोग हैं जो गरीब रह गए हैं, और बाकी सारे जो है वो क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। तो ये इंडिया के बारे में आज की डेट में बात की जाती है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप कह रहे हो कि हमारे 11% लोग पुअर है, तो आपने अपना खुद का एक मेजर बनाया और उसके बेसिस पे आप कह रहे हो कि ये पुअर है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आपने बोरो किया है वो आपने करा है ऑक्सफोर्ड का एक पैरामीटर होते थे, आपने इसके अंदर 2 और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स ऐड कर दिए। उनमें से एक पैरामीटर जो आपने ऐड किया वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, which is banking reach. Although banking is a very important factor on poverty, banking का और access of banking का जो impact है बहुत ज्यादा है, बट कई बार लगता है कि इस फैक्टर की वजह से इंडिया की पावर्टी और भी ज्यादा कम दिखाई दे रही है जितनी होनी चाहिए, या अदर फैक्टर्स को हम कंसिडर करें। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप को कर सकते हैं कि क्या इंडिया का जो करंट वे ऑफ कैलकुलेशन है पावर्टी का, क्या वो एक रोबस्ट तरीका है उसको कैलकुलेट करने का, कि हम कोई बेटर मेथड लेके आ सकते हैं। तो अभी अगर आप पुराने वाले मेथड भी देखिए, तो पुराने वाले मेथड के हिसाब से भी अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ नंबर ऑफ पुअर जो है, अगर 2019-2020 के बारे में बात करें तो एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा जेएनयू के, उन्होंने जो तेंदुलकर का जो तरीका था उसी को उन्होंने पीएलएफएस के डेटा के ऊपर अप्लाई किया, और उन्होंने कहा कि इंडिया में आज की डेट के अंदर भी अराउंड 350 मिलियन लोग, 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पुअर हैं। तो अब ये पावर्टी के नंबर जो हैं बड़े स्टार्क हैं एज कम्पेयर टू जो सरकार के पावर्टी के नंबर्स हैं। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, और हमें दिखता है कि कोविड के बाद तो कुछ पावर्टी जो है एक्चुअली में इंडिया में और भी ज्यादा इंक्रीज हुई होगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लॉस ऑफ जॉब्स एज वेल। सो ये हमें नंबर्स जो है हमें वापस ट्रैक करने हैं कि हमारे नंबर्स जो है वो ठीक है या नहीं है, और उनको हम कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, क्योंकि इसका एक मेजर इम्पैक्ट इंडिया के पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी होगा। अब दूसरा जो एक फैक्टर आता है वो आता है जेंडर इक्वालिटी का। जब हम जेंडर हमने बात करी कि इंडिया के अंदर क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर तो इशू है ही, बट जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर एक और भी बड़ा इशू है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एक्सेस है, अभी हमारा रिसेंटली वुमेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे था ऑन 8th of March, एंड अगर हम देखते हैं आज की डेट में हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन स्पेशली इन लीडरशिप पोजीशंस, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखिए, अब जब हम फॉर एग्जांपल जब हम ये ले आएंगे वुमेन रिजर्वेशन बिल, कई सालों से बात हो रही है, पहली बार नहीं हुआ, कई सालों से हम बात कर रहे हैं, और कई बार लोकसभा के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ है ये बिल, और उसके बाद कई बार ये लैप्स हुआ है, बट फाइनली जब ये बिल पास हुआ तो हो सकता है हमारा क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन जो अच्छा हो। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पंचायती राज लेवल पे तो अभी भी 50% रिजर्वेशन है, डिस्पाइट द फैक्ट वहां पर आज की डेट में अगर आपने एक सीरीज आती है उस पे अमेजॉन प्राइम पे पंचायत, अगर आपने देखी हो तो पंचायत पति की जो प्रथा है वो आज की डेट में भी काफी ज्यादा चलती है यहाँ पर, कि फॉर द नेम सेक आपके वुमेन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, बट द रियल रिप्रेजेंटेटिव इज द हाउस, द मैन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस जहां से वो वुमेन इलेक्ट हुई है। तो ये एक मेजर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इशू आता है। देन हेल्थ एंड सर्वाइवल में वुमेन का जो पैरामीटर्स हैं, चाइल्ड सेक्स रेशो देख लीजिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लीजिए, अनीमिया का रेट देख लीजिए, ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं ये वुमेन के अगेंस्ट डेक्ट अप है। एजुकेशनल अटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के अंदर हम देखते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन कम है एज कंपेयर टू मेन, और ये एक मेजर फैक्टर है जो अगर सॉल्व हमने नहीं किया तो हम विकसित भारत कभी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि अगर हमें चाइना से कंपेयर करना है, यूएस से कंपेयर करना है, किसी भी डेवलप कंट्री से अपने आप को compete करना है, तो उसके लिए हमें वुमेन को सेम अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी जो मेन को दी गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, और परहैप्स एक इग्नोर्ड फैक्टर है हमारे ग्रोथ पैराडाइम का पिछले कई सालों से। फिर वुमेन वर्कफोर्स भी जो अगर आप देखिए तो बहुत कम वर्कफोर्स है इंडिया के अंदर। अगर आप इम्पैक्ट देखिए कोविड का, कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता तो सबसे पहले जिसकी नौकरी जाती है वो वुमेन होती है, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। एक्सेस टू हेल्थ में वुमेन का जो एक्सेस टू हेल्थ है वो काफी कम है,
और एक्सेस टू एजुकेशन में भी एज कंपेयर टू मैन उनका एजुकेशन के लिए एक्सेस कम है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स वो हैं जहां पर हमें दिखता है कि women आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी रिस्ट्रिक्ट होता है। देन एम्प्लॉयमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर हम बात करें इंडिया की क्या कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बेसिकली मतलब होता है कि 100 कि अगर अगर हमारे पास 100 रुपए अगर हमारे पास 100 लोग हैं हमारे पास 59 से 15 से 59 की एज ग्रुप के अंदर, तो उन 100 लोगों में से कौन से लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, एंड जो करना चाहते हैं वो एक्टिवली दे आर लुकिंग फॉर वर्क। तो डेफिनेशन लेबर फोर्स की बड़ी स्पेशल होती है। लेबर फोर्स की डेफिनेशन होती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की कि आपके 15 से 59 के एज ग्रुप में कौन से ऐसे लोग हैं या तो वो काम कर रहे हैं या फिर वो काम करना चाहते हैं और वो काम ढूंढ भी रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये जो है आज की डेट में इंडिया में अराउंड 40% है। यही मैं आपको बता रहा था कि इंडिया के अंदर जो इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है क्योंकि कम है, इसीलिए इंडिया का डेवलप कंट्री होना का चांसेस भी मिनिमाइज होते हैं, क्योंकि हमें वुमेन को लेबर फोर्स के अंदर लेके आना पड़ेगा। जब तक आप वुमेन को लेबर फोर्स में नहीं लेके आओगे, आप 50% लोगों से काम नहीं करवाओगे, तब तक आप कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हो। जो दूसरा फैक्टर है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट इज उनमें से लेबर फोर्स में से कौन से लोग वो हैं जो एम्प्लॉयड हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली वो लोग हैं जो इनमें काम करना चाहते हैं बट उनको काम मिल नहीं रहा है। तो वो हमारा लिमिटेड है। बाकी बाय द वे ये हम बहुत ही लिबरल डेफिनेशन ले रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की। जब आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वेज आर देयर टू चेक एम्प्लॉयमेंट। एक होता है यूपीएसएस, ये यूपीएसएस का डेटा है, यूनिफॉर्म प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस, दिस इज यूपीएसएस। और हमारे पास और भी तरीके होते हैं, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस एंड यूपीएस। तो ये जो बाकी मेथड है स्पेशली करंट वीकली स्टेटस एंड करंट डेली स्टेटस, ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। और इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू जो यूपीएसएस से बात जो निकल के आता है। तो ये भी एक चीज एक आपको परहैप्स आपका दिमाग में रखनी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट भी या एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट भी कई तरीकों से इंडिया में देखा जाता है। देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन। अब एजुकेशन के अंदर अगर हम देखें कि हमारा जो एजुकेशन जीडीपी का जो शेयर है एजुकेशन के अंदर वो काफी ज्यादा कम है। तो और हम पिछले कई सालों से ये इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बट उसको इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट क्या है? उसका इम्पैक्ट ये है कि इंडिया के अंदर जो रूरल एरियाज के अंदर बच्चे हैं वो 5th क्लास का बच्चा 2nd क्लास की रीडिंग नहीं कर सकता, 8th क्लास का बच्चा 5th क्लास की रीडिंग और राइटिंग नहीं कर सकता है। तो एक रिपोर्ट आती है एसर रिपोर्ट, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बाय प्रथम एनजीओ, जो हमें स्टेटस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताता है, जो हमें लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताता है। कॉलेज जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कॉलेज गए तो वहां से आपने क्या स्किल सीखा, क्या आप ऐसी चीज सीखे हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो जो चीजें हैं जिसको आप डे टू डे पे यूज कर सकते हैं, वो जो चीजें इंडिया के अंदर एजुकेशन के सिस्टम के अंदर मिसिंग है आज की डेट में, स्पेशली ये मिसिंग है रूरल एरियाज के अंदर और स्कूल्स के अंदर, जहां पर बच्चे जो हैं वो स्कूल तो जा रहे हैं बट स्कूल जाने के बावजूद उनका जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत ज्यादा पुअर है। तो ये हमें बेसिकली, और कोविड के बाद से तो ये और भी बुरी सिचुएशन थी, बट पिछले 1 साल के अंदर सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई। अगर आप रिसेंट एसर रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी हो तो उसके अंदर थोड़ा सा बेटर इंप्रूवमेंट है बिकॉज ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड एज निपुण। उसमें आपने अपने अर्ली क्या कहते हैं एजुकेशन एंड अर्ली न्यूमरेसी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से थोड़े से नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, बट स्टिल दीज नंबर्स आर वेरी वेरी पुअर। देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है हमारा हेल्थ का। अगर हम हेल्थ का डेटा देखें तो एक हमारे पास डेटा सेट होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ये आपको डेटा बताता है इंडिया के न्यूट्रिशन लेवल के ऊपर। बहुत सारे डेटा सेट्स बताता है बट ये बेसिकली फैमिली लेवल पे हेल्थ को ट्रैक करता है। और अभी ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा भी अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था। और वो डेटा क्या बता रहा है हमें? वो हमें डेटा बता रहा है कि इंडिया के अंदर
अगर आप फॉर एग्जांपल स्टंटिंग देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड पे ना स्टंटिंग है और एनीमिया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका मतलब ये है, इधर जो नंबर्स हैं ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर है। तो जो आपके क्या कहते हैं एक्सिस है वो क्या कहते हैं इन्वर्स्ड है। इन्वर्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि अगर ये नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर ये नंबर ऊपर की तरफ जा रहा है तो अच्छी चीज हो रही है कि पहले इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में पहले 75% लोग जो अनीमिक थे और फिर 2015 तक आते आते ये सिर्फ 60% लोग रह गए। तो जितना आप ऊपर जाएंगे, इस तरफ ऊपर जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा, अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपके लिए खराब है, क्योंकि वो नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है, नीचे जाने पे नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिया हुआ है, इन्वर्टेड लिया हुआ है, स्केल्स आर इन्वर्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस। और अगर आप देखिए कि स्टंटिंग 2015 तक तो रिड्यूस हुई आपकी, 2015 तक आपकी अनीमिया, लैक ऑफ आयरन, तो और स्टंटिंग का मतलब होता है हाइट फॉर योर गिवन एज, ये सारी की सारी इंप्रूव हो रही थी, बट उसके बाद से ये भी फ्लैटन हो गए और ये तो इनफैक्ट गिरनी शुरू हो गई। और अगर आप बाकी कुछ डिजीज देखिए, डायरिया देख लिए या एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस देख लीजिए, तो उस केस के अंदर भी आपको दिख रहा है कि आपके जो मेजर गेन्स थे 2015 तक हुए थे और उसके बाद से अब ये जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर बेसिकली टेलिंग यू कि आपके यहाँ पर हेल्थ को लेके भी ज्यादा कोई बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं है, अभी बहुत ज्यादा स्कोप है हेल्थ को लेके भी इंप्रूवमेंट करने का। फिर उसके बाद आ जाता है उसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट चीज के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं इंडिया की इनइक्वालिटी के ऊपर डिबेट। अगर आप इंडिया की इनइक्वालिटी को देखना चाहते हैं तो ये इंडिया की इनइक्वालिटी का ट्रेंड बता रहा है। कैसे बता रहा है इंडिया की इनइक्वालिटी का ट्रेंड? अगर आप देखिए टॉप 10% की इनकम और टॉप 1% की इनकम देखिए 1991 के बाद, टॉप 10% की इनकम किससे कितनी तेजी से इंक्रीज हुई है, टॉप 1% की इनकम कितनी तेजी से इंक्रीज हुई है, एज कंपेयर टू जो बॉटम 50% है उनकी इनकम का शेयर जो है जीडीपी के अंदर वो कम, जीएनपी के अंदर वो कम हुआ है। आज की डेट में देयर इज अ पेपर रिटन बाय थॉमस पिकेटी, ही इज अ नोबेल लॉरिएट। उन्होंने और अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले इंडिया में भी थे और उन्होंने कुछ टैक्सेशन के बारे में भी बात करी थी। और वो कहते हैं उनका उनका एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब्स, एक बार चेक कर सकते हैं, बहुत आपको इनइक्वालिटी के ऊपर बड़ा अच्छा डेटा मिलेगा वहां पर। अब वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर वी हैव मूव फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनियर राज। 1924 का जब वो डेटा देखते हैं तो देखते हैं टॉप 1% के पास, इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास जो थे, सबसे अमीर लोगों के पास इंडिया का क्या कहते हैं अराउंड 21% 22% इनकम थी। और जब वो यही चीज 2017-2018 के डेटा के ऊपर वापस देखते हैं तो वो कहते हैं कि इंडिया के टॉप 1% के पास 24% इंडिया की क्या कहते हैं इनकम है। तो ये बोलते हैं कि इंडिया ब्रिटिश राज से आज की डेट में बिलियनियर राज की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप स्टार्टअप्स देखिए, अगर आप देखिए यूनिकॉर्न्स कितने आ गए हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि हाँ इंडिया के अंदर अमीरी भी है, इंडिया के अंदर जो टॉप कार्ड्स हैं वो कितनी ज्यादा बिक रही हैं। अगर आप एवरी ईयर जब आप देखते हैं कि जो आपकी 1 करोड़ की जो 1 करोड़ प्लस जो आपकी कार्स हैं वो आपकी इंक्रीज होती जा रही है, तो आपको दिख रहा है कि यस इंडिया हैज बिकम मच मोर ओप्यूलेंट। हम पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च करने में शर्मा भी नहीं रहे हैं। तो और शादियों के ऊपर आप एक्सपेंडिचर देख लीजिए तो वो भी इंक्रीज धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो इंडिया का मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसका इनकम का शेयर जो है वो गिरता हुआ गया है, जो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। क्योंकि ये सिर्फ एक जीडीपी की बात नहीं है, ये सोशल फैब्रिक की बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया का सोशल फैब्रिक के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा, क्राइम्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा, सोसाइटी की सोशल कैपिटल के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, रिजर्वेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पाएगा, लोग और रिजर्वेशन मांगेंगे, स्टेट्स के अंदर भी रिजर्वेशन मांगेंगे लोग, और फिर क्या कहते हैं ये अगेन सोशल फैब्रिक जो है आपकी सोसाइटी का उसको और भी ज्यादा खराब करना शुरू करेगा। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको देख के चलना पड़ता है, जो इंडिया के अंदर आज की डेट में प्रॉब्लमैटिक है। ये मैंने आपको नंबर्स करा दिए थे, आई थिंक मोर और लेस दिस वाज यस, ये नंबर्स मैं आपको एक्चुअली करा चुका हूँ, सॉरी रिपीट हो गया। Yes, so these are all the numbers that I had to basically talk to you about, and अगर मैं बस आपको एक ये और फीडबैक आपको वो ये और वो कराना था, हमारा इंडिया का वो देखें प्रोग्रेस देखें आज तक का इंडिया का, अगर आप प्रोग्रेस देखना चाहते हैं
तो इंडिया का प्रोग्रेस कैसे हुआ है, इंडिया का प्रोग्रेस अगर हम देखें पाथ कैसा रहा है कि 1950 से लेकर 1980s तक हमारा जो एक अप्रोच था, वो एक अप्रोच जो था, एक सेकेंड, जो हमारा अप्रोच था वो अप्रोच हमारा था ऑफ पैटर्नलिस्टिक स्टेट का एक अप्रोच हमारा होता था, जिसमें हम कहते थे कि स्टेट सब कुछ देगा, स्टेट ही ब्रिटिश ने स्टेट को मतलब स्टेट ने ब्रिटिश को रिप्लेस कर दिया है, और वो एक माई बाप की तरह है जो सारी चीजें इंडिया के सिटीजन्स को देगा, जिसको हम बोलते थे ट्रिकल डाउन अप्रोच। फिर वो अप्रोच आज की डेट में फिर वो अप्रोच चेंज होनी शुरू हुई, और वो अप्रोच चेंज होके वो अप्रोच बन गई एक डिमांड ड्रिवन अप्रोच, क्योंकि यहाँ से कोलिशन पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर शुरू हो गई, और कोलिशन पॉलिटिक्स के अंदर अब यहाँ पर लोगों ने डिमांड करना शुरू किया कि मुझे ये चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे खाने के लिए चीजें चाहिए। तो वो इंडिया का पैराडाइम शिफ्ट था, और उस पैराडाइम शिफ्ट के बाद में अब आपका अगर आप देखें तो 2004 के बाद एक नई अप्रोच आई जिसको हम बोलते हैं राइट्स बेस्ड अप्रोच, जिसको चैंपियन किया था मनमोहन सिंह जी ने। तो वहां पर एनआरईजीए, फूड सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे राइट्स आपके आए। तो इसको हम बोलते हैं राइट्स बेस्ड अप्रोच, जहां पर आपने लीगल राइट्स दे दिए लोगों को, और सरकार को रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि अगर आप ये राइट्स नहीं प्रोवाइड करोगे तो अब जो इंसान है, वो सिटीजन जो है, वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में आपको ले जाएगा और कोर्ट से आपसे आपसे रिलीफ लेगा। और 2014 के बाद जो हम अप्रोच देखते हैं इंडिया की, वो एक डिफरेंट अप्रोच देखते हैं अंडर द करंट प्राइम मिनिस्टर, जहां पर न्यू वेलफेयरिज्म की हम बात करते हैं कि जहां पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। जब हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इंडिया का क्या कहते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है कि आपने बिजली, आपने लोगों को हर घर में सौभाग्य स्कीम के साथ आपने बिजली दी है, आपने गैस सिलेंडर दिया है हर घर के अंदर, आपने हर घर जल के अंदर, नल के अंदर आपने हर घर को पानी दिया है। तो इनको हम बोलते हैं सोशल, और आपने क्या कहते हैं, ये सारी की सारी जो टॉयलेट्स बनवाए आपने हर घर के अंदर, ये सारी चीजें हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट इतनी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उन्होंने लास्ट माइल डिलीवरी दी है, जो आज तक बहुत सारी गवर्नमेंट्स नहीं दे पाई हैं। सबसे अच्छी बात इस गवर्नमेंट की है कि लास्ट माइल डिलीवरी बहुत अच्छी करी है, और दूसरा उसी डिलीवरी को उन्होंने डिजिटल फॉर्म दे दिया है। पैसे अगर किसी चीज में देना है तो यूपीआई के थ्रू देंगे, तो उन्होंने यूपीआई और जिसको हम बोलते हैं जैम ट्रिनिटी के थ्रू इस पूरे आर्किटेक्चर को, जो वेलफेयर का आर्किटेक्चर है, उसको काफी ज्यादा अच्छा कर दिया है, जो जो बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। और फाइनली इस सरकार ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनराइज करा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दैट वी हैव, एंड हमारे यहाँ पर रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड रोडवेज, इन तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, एंड बिकॉज ऑफ विच ट्रांसपोर्ट का जो जो मेथड है वो काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो गया इंडिया के अंदर। तो इनके अलावा आज की डेट में जो हमें नया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर करना है वो हेल्थ और एजुकेशन का करना है, और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन दैट वी हैव, और जो हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके बेसिस पे बाकी सारी चीजें अपने आप ही स्ट्रेंथन हो जाएंगी। बट ये दो चीजें ऐसी है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको मैं बोलता हूँ, कि उसके ऊपर आपको अब ज्यादा फोकस करना है अगले 10 से 15 साल। So this is what I had to discuss. I will be, I'll be happy to take up more questions, and this is me, and this is my number. You can always reach out to me on my WhatsApp number, but I take a lot of time to reply. And ये मेरा पिंक प्रोफेसर करके YouTube चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कुछ इकोनॉमिक न्यूज अगर इंटरेस्ट है, स्पेशली इकोनॉमेट्रिक्स जो मैं पढ़ाता हूँ, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ, तो उसके ऊपर काफी सारे वीडियोस हैं, और सिविल सर्विसेज के बच्चों के लिए काफी सारे वीडियोस होते हैं जिसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज है। और फाइनली अगर किसी के क्लास 12th में बच्चे हों तो उनकी गाइडेंस के लिए मैं काफी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होते हैं। मैं यूनिवर्सिटी की साइड से भी एडमिशन के उसमें हूँ, तो इसका भी थोड़ा सा मुझे आइडिया रहता है पिछले 3-4 सालों से, स्पेशली सीयूईटी के बाद। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू। एक बार ये स्लाइड थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि बहुत हेवी स्लाइड है, एंड फिर मैं एक बार आपसे क्वेश्चंस लेता हूँ। गिव मी 1 सेकंड। Sir, shall I read out questions for you? मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। हाँ, मैं बस स्लाइड ओपन होने का वेट कर रहा था। ठीक है। अब क्वेश्चंस जो हैं,
देखिए प्रोफेसर दिनेश कुमार सर ने क्वेश्चन पूछा है कि इफ जीडीपी इज हाई और लो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी के अंदर जीडीपी जो है एक फ्रंटलाइन नंबर है। तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहले जीडीपी से ही देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे आप टेम्परेचर देखते ही सबसे पहले इंसान को बताते हैं कि वो हेल्दी है नहीं है। तो ये एक बेसिक पैरामीटर है जीडीपी को मतलब कंट्री की हेल्थ के बारे में बताने का। जो हम कहते हैं कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से तो आप कहेंगे कि इंडिया बहुत अच्छा है, बट अगर आप पर कैपिटा बेसिस पे देखिए तो इंडिया की रैंक 150 के अराउंड है। वही नंबर जो आप कह रहे हो फिफ्थ लार्जेस्ट है, 150 भी बन सकता है। तो एक नॉमिनल नंबर है, उस नॉमिनल नंबर को समझना इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। उस नंबर का एक सैक्रोसेंट है वो नंबर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उस नंबर के अलावा भी बहुत सारी और चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको हमें देखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बहुत सारे नंबर्स आज डिस्कस करे आपके साथ में। देन ये वन्ना आर्य जी का क्वेश्चन है, डॉक्टर वन्ना आर्य जी का कुल्लू से कि आउटफ्लो ऑफ एफआईआई अमंग द वेरियस फैक्टर्स लीडिंग टू डाउनफॉल ऑफ दलाल स्ट्रीट इज रेजिंग द डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्योर एंड हाउ कैन इट रेज डिस्पाइट। देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी धीरे धीरे बढ़ रही है और फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं एसआईपी में। इनफैक्ट अब आज की डेट में आप इक्विटी मार्केट को ये नहीं बोल सकते कि वो एक एग्जॉटिक मार्केट है। इक्विटी मार्केट आज की डेट में एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट बन चुका है फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ, नॉट अ मेजर पार्ट बट हाँ बहुत बहुत हद तक ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो चुका है, बन चुका है। और आज की डेट में अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो उनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 10 लाख करोड़ पहुंच चुका है पिछले कुछ सालों में। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो चुका है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम आंखें जो जो वो ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही है, तो उसके बाद अगर आपने देखा हो तो म्यूचुअल फंड सही है के बाद में वो डायलॉग आता है कि ये रिस्की चीज है, आप अपने आप को समझ समझ के आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? आज की डेट में हम एसईसी कोर्सेज कराते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। हमारे कॉलेज के अंदर अभी एक कोर्स होता है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ाते हैं, स्टॉक्स के बारे में पढ़ाते हैं। आप अपने कॉलेज के अंदर एक स्मॉल एफडीपी कर सकते हैं या फिर एक स्मॉल सेशन कर सकते हैं 5-6 दिन का, जिसमें आप बता सकते हैं कि अच्छा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें सेविंग हो सकती है, जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कीजिए। आप अलग अलग एप्स के बारे में आप जान सकते हैं कि अच्छा इन ऐप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे तो देखिए लोगों को पता चलेगा कि हाँ आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। इन्फ्लेशन आज के डेट में 6 से 7% रहता है, और अगर आपको एफडी 8-7-8% देगा तो आपका पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो उसके लिए लोग थोड़ा रिस्क लेने के लिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट आप उसके साथ भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ना कि सिर्फ स्टॉक्स। आपको देखना है कि मैं रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करूं, मैं गोल्ड में भी कुछ पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करूं, मैं स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट करूं, और मैं हो सकता है अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो आप क्रिप्टोज में भी सोच सकते हैं। इनफैक्ट मेरा अभी एक दोस्त है, पिछले 6-7 महीनों में उसने 7 से 8 करोड़ रुपए बनाए हैं क्रिप्टोज से। तो और क्योंकि वो यूएस में है इसलिए उसका टैक्स रेट भी इतना नहीं है। तो अगर आपको रिस्क एपिटाइट है, आज पिछले कुछ महीनों में उसका बिल्कुल जीरो पोर्टफोलियो था, जीरो पोर्टफोलियो से 8 करोड़ पोर्टफोलियो हो गया उसका। तो दिस इज अगेन रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से अपना रिस्क को वो कर रहे हैं। बट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे रेज होगी ही होगी, जैसे जैसे आपकी कंट्री बढ़ेगी आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स और भी ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के, और जितनी ज्यादा लिटरेसी बढ़ेगी उतना और लोग इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आप आज की मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल बता देता हूँ कि जब हम अपना एनपीएस में सेव करते हैं तो उसके अंदर भी ऑप्शन आता है कि आप सरकारी बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो और इक्विटी में इन्वेस्ट कितना करना चाहते हो। और हमें एक पेंशन फंड मैनेजर मिलता है, वो पेंशन फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे हमारा ही पैसा गवर्नमेंट स्टॉक में लगा रहा होता है। तो धीरे धीरे ये भी चीज बढ़नी शुरू होगी, हमारे पास और ऑप्शंस आएंगे, तो धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा। व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट अपार्ट फ्रॉम राइज इन पॉवर्टी? राइज नहीं होगा, पॉवर्टी यूजुअली फॉल होती है जब जीडीपी इंक्रीज होती है। बट जीडी पॉवर्टी एक ऐसा नंबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पॉवर्टी तो फॉल हो ही जाएगी, भुखमरी तो इंडिया में गिर ही जाएगी। आप 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हो, जब 80 करोड़ लोगों को खाना आप फ्री में दे ही रहे हो तो आपकी भुखमरी तो रह ही नहीं जाएगी ना, बेसिक पॉवर्टी की इश्यूज तो खत्म हो ही जाएंगे। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
Siddharth, sir, we are unable to hear you. Hello. Yes, sir. Now we can hear you. Yes. So this was about it. I think if there are no more questions, we can close for the day. Yes, sir. No more questions till now. And firstly, I must appreciate regarding your presentation. इस तरीके से आपने इसको मतलब बनाया है, आपके एफर्ट्स और साफ साफ दिखते हैं कि आप कितने डेडिकेटेड है टुवर्ड्स कितना एक एंगेजिंग से आपने इस पीपीटी को तैयार किया है. फर्स्टली तो आई मस्ट थैंक यू फॉर दिस. और जो आपने स्टार्टिंग जो शुरुआत की हेल्थ इंडिकेटर्स के साथ में इकोनॉमिक पैरामीटर्स को जो लिंक किया, वो भी एंगेजिंग था. और साथ साथ फिर आपने हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को डिस्कस किया, और ये भी डिस्कस किया दैट इनवर्ड लुकिंग अप्रोच जो है वो ज़्यादा काम नहीं करेगी. हम जितना मर्जी सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करें इंटरनेशनल लेवल पर, और दलाल स्ट्रीट पर जो शेयर मार्केट में जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक इंडियन इकोनॉमी के प्लस माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स के हिसाब से रुपी डेप्रिसिएशन, इवन दो आरबीआई ने अभी रिसेंट मतलब लिक्विडिटी बढ़ाई है, लेकिन स्टिल उसका क्या इम्पैक्ट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल, एंड प्लस जो आपने एक बात कही कि वुमेन को जो उनका रोल है वो बढ़ना चाहिए. रोल ही बढ़ेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है. उनका कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल होना चाहिए. और आपने चैलेंजेस जो है बहुत सारे डिस्कस किए, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैट बॉक्स में भी इतने सारे आपको थैंक्स और सेशंस के लिए रिगार्ड्स आ रहे हैं. और साथ I would like to invite Tanvi Thakur to formally present vote of thanks to Mr. Siddharth sir and participants. Tanvi, wait, let me unmute you. Good afternoon, everyone. As we conclude this one-day FTP, it is my honor to express heartfelt gratitude to everyone who made this event a success. First and foremost, I would like to extend our sincere thanks to our resource person, Mr. Siddharth Rathod, for sharing his extensive knowledge and expertise with us today. Your detailed explanation and engaging style have made this session truly valuable for all the participants. We appreciate the time and effort you have dedicated to making this one-day FTP a great learning experience. I would also like to thank our respected principal, Sir, Dr. Dinesh Kumar Sharma, for his constant support. A special thanks to all the participants who join us today from various parts of the country. Your active engagement and enthusiasm have greatly contributed to the success of this one-day FTP. We hope that the knowledge you have gained today will help you in your academic and professional endeavors. I would also like to express my gratitude to one-day FTP coordinator, Mr. Nishan Narak. Finally, thank you all once again for being a part of this event. We look forward to your participation in future events. Have a wonderful day ahead. Thank you so much, Siddharth sir. We'll be reaching out for events to be held in the future. Thank you, Nishan. Thank you, sir, and thank you, Tanvi. पार्टिसिपेंट्स, आप सबके लिए एक इंफॉर्मेशन है. 17th को एक नेशनल वेबिनार जो है वो भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑन द थीम मेक इन इंडिया ड्राइविंग ग्रोथ, इनोवेशन एंड सेल्फ रिलायंस, जिसकी डिटेल्स आपकी ईमेल पे आ जाएंगी. और प्लीज काइंडली रजिस्टर बाय 15th. And Ms. Shahala Ayub, Assistant Professor of Economics, Government College for Women, MA Road, Srinagar, will be resource person for the upcoming webinar. Thank you all. You can leave now if you have filled the feedback form.